हाँ अजमेरा जी, आप बोल रहे थे वो मैडम से कुछ बातचीत हो रहा था। हाँ, बोलिए सो बोलिए सर। अच्छा अच्छा, नहीं, सो दे आर न्यू टू द सिस्टम, आई गॉट इट, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव या ब्रोकिंग बैकग्राउंड। नो, बट दे वांट टू परस्यू फॉर द ब्रोकिंग, सो So दैट्स व्हाई। primarily, I believe this mutual fund certification program that you would be undergoing, ये कोई स्पेसिफिक चैनल के लिए है, ब्रोकिंग चैनल या वेल्थ हाँ, चैनल? ब्रोकिंग चैनल इज द मेजर चैनल वैसा है। Okay, okay. So I think primary objective is broking only. So obviously mutual funds रहने से फायदा होगा. But you are focusing primary to mutual funds. So मतलब already they have started sourcing accounts. मतलब already broking में they are up and on. नहीं सर, क्योंकि पहले सर्टिफिकेशन होगा, फिर वो लोग एआरएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट? देन ओनली दे कैन गेट द लाइसेंस फॉर ब्रोकिंग का सर, डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रोकिंग का सर्टिफिकेशन सर, जैसे वो कैश मार्केट का, डेरिवेटिव्स का। नहीं सर, ये खाली म्यूचुअल फंड के लिए है। कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव्स के लिए अलग अलग आते हैं ना सर्टिफिकेशंस। अच्छा, वो डीलर लोगों के लिए होगा। अच्छा यस, अच्छा। यस, यस। इन लोगों का इंश्योरेंस का सर्टिफिकेशन हो गया? हाँ सर, मेजरली मतलब सबके अलग अलग ये है। someone should do both. Someone should do pursue mutual fund. So ओके, in that way, ठीक है सर। तो सर क्या हुआ, हो गया we मतलब can start, 50? sir. हाँ हाँ, ओके ओके, we can ठीक start. ठीक ठीक। यस। सो गुड इवनिंग ऑल। सो अच्छा, आई शुड कीप इट इन हिंदी और इंग्लिश और मिक्स ऑफ बोथ Both, सर? बोथ, both, sir. ठीक है ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले लेट मी जस्ट हैव अ क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड। आई एम बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता. As you could see on the screen, my name is Pritam. My current geography is Kolkata only. To be precise, I got to know some of you are from joining from Pan India, so maybe some bongs or code from Calculations should be there from Kolkata. So I'm based out of Goria at this point of time. Uh, this exam is important primarily for the reason that it's a regulatory requirement. Okay, Sweta Agarwal ma'am, yes ma'am, good to see you. You can use the chat window during the course of the session. You have any doubts, you can ask me. This is not that tough an exam, but obviously there is no free lunch. तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा. And that would be a strategic way of dealing with the same. Original workbook जो है NISM 5A, that would going to cost you 350 pages. 350 पन्ना पढ़ना उतना आसान नहीं होता. And that too, study materials तो अच्छा है, but after the day's hard work, going through this 350 pages is tough. So what we have decided, वी हैव हम लोग का कुछ स्टडी मटेरियल्स हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में. So since certain technicalities are there, we cannot have this ID and password. In case it is required by the management, we can provide you with the same. But there would be question banks. There would be question banks, but do not jump on the question bank outright. I will be sharing my screen. So there will be bullet points. How the bullet points will be looking like. So, anyways, I will be sharing. 12 to chapter, 12 chapters are there. So maybe a couple of things if I could quickly share with you all. Uh, I'm sharing my entire screen so that they cut now. So rules of the games is that it's a 2 hours exam, no negative marking, 100 MCQ multiple choice questions should be there, and pass marks is 50. So 2 घंटे में आपको 50 चाहिए होता है. 50 is the pass marks, and 100 MCQ is there. कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं. 2 घंटे का एग्जाम है. So it's not tough. I will be taking you through, but कुछ technicalities है जैसे standard deviation, sharp ratio, all those things. तो 12 chapters में ये लास्ट में है. तो tomorrow also we would be having a session, but with the help of these days many AI platform and other things are there. तो bullet points जो है उसका भी आप सारांश निकाल सकते हो. और maybe you can just go to NISM 5A. You can download the materials that is there, और उसके बाद you can run your AI engines and other things. But उसका दरकार नहीं पड़ेगा. In case some of you are very flexible, को चाहिए होता है, you can do that. But we would be the way we are suggesting you to study, जैसे आपको बोला जाएगा वैसे आप करोगे. तो आई एम होपफुल 1.5 से 2 घंटा हर रोज एक सप्ताह पढ़ेंगे तो हो जाएगा काम.
द लॉजिक इज लाइक दैट, देयर 12 चैप्टर्स है, 12 चैप्टर्स आर देयर। शुरुआत का चैप्टर में आपको 1 घंटा हो सके लग जाए, 1 आवर इज ऑन द हायर साइड। तो 12 चैप्टर में मेरे ख्याल से 7-8 घंटे के अंदर में हो जाएगा, 7 to 8 आवर्स। उसके बाद मॉक टेस्ट कुछ करेंगे, कुछ डाउट क्लैरिफिकेशन का अगर कुछ सेशन होता है। सो कुल मिला के आई थिंक 2 आवर्स ईच फॉर 7 डेज, समथिंग 14-15 आवर्स में हो जाना चाहिए। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जो भी आप करना है, यू नीड टू अपीयर फॉर द एग्जाम विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, प्रेफरेबली आफ्टर 11th डे और 12th डे। 11-12 दिन लग जाता है, एज्यूमिंग यू आर ऑल फ्रेशर्स, you don't have any idea on NISM 5A. So this is a regulatory requirement to put the things in perspective कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। और वो लाइसेंस का मतलब यहाँ पे होता है कि NISM 5A आपको एग्जाम को क्लियर करना है। सो दैट इज इन शॉर्ट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट कि कैसे क्या करना है, ऑल दोस थिंग्स। तो वी विल बी कवरिंग नॉट ओनली द स्टडी मटेरियल्स में जो लिखा है, उसके साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी आपको दिखाएंगे ताकि थोड़ा सुविधा हो जाए। तो कुछ एमसीक्यू आपको दिया गया है, बुलेट पॉइंट्स एक तो भेज देंगे, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द बुलेट पॉइंटर्स शुड बी, it looks like this, just to so that no confusion is there. I have shared my screen, so the bullet points looks like this, something like that, and there are some 61 pages are there. I would strongly recommend इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आप ले लीजिए। और कुछ भी चीज आप मोबाइल से मत पढ़िए, बड़ा स्क्रीन में मे बी टैब और लैपटॉप कंप्यूटर से देखने से फायदा होता है। सो दैट इज देयर नाउ। सो दिस गोज लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा। तो 12 चैप्टर्स है, एक एक चैप्टर का बुलेट पॉइंट्स दिया गया। तो दिस इज चैप्टर नंबर 1 एज यू कुड सी। तो चैप्टर 1, हर एक चैप्टर का 2-3 पन्ना होता है। तो शायद ये 3 पन्ना हो गया, चैप्टर 2 आ गया, तो 12 चैप्टर्स ऐसे ही आपको कवर करना है। तो ऐसे तो सिंपल ही है, प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट वी कैन स्टे इन टच। कल भी एक तो सेशन होगा, वी ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ देम, बट कुछ कुछ जगह अगर ब्लैंक रह जाता है तो आप देख लीजिएगा, दिक्कत होगा, यू कैन ऑलवेज टच बेस विद अस। As of now, anybody has any questions? But it will be interesting for sure because I will be giving you practical touch to it. एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढना है। पीपल से कि जनरल पीपल हैव इंटेंशन, जनरल नोशन ये रहता है एग्जाम एग्जाम की जगह में है और माल बेचना अलग सा चीज है, बट ऐसे नहीं है। ऑब्वियसली सेल्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैव नॉट बीन शेयर इन दिस मॉड्यूल। तो उसके लिए तो अलग से हम लोग डेफिनेटली, अगर मौका मिलता है आई एम देयर, तो मैं सेल्स ट्रेनिंग भी देखता हूँ। बट अदरवाइज एग्जाम क्लियर करने के टाइम पे कुछ टेक्निकलिटीज, जैसे आपको बताया हूँ कि रिस्क को कैसे मेजर करना है, अच्छा एक म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढना है, ज्यादा रिटर्न देने से कि म्यूचुअल फंड अच्छा हो जाता है। सो ऑल दोस थिंग्स विल बी कवरिंग, बट इट वुड नॉट बी टफ प्रोवाइडेड यू आर गिविंग 1 से 1.5 घंटा फॉर द नेक्स्ट 7 days। दैट इज प्रीरिक्विजिट। सो दिस स्टडी मटेरियल्स यू विल बी गेटिंग, इसका तो है, नहीं तो मैं उमा मैडम से, आपका सीनियर मैनेजमेंट हुसेवर इज देयर, उनको और एक तो चीज मेल कर दूंगा। इस इज दिस पीपीटी। पीपीटी का प्रिंट आउट का दरकार नहीं, आई वुड रिकमेंड यू इसका प्रिंट आउट लीजिए बोथ साइड का, तो अप्रोक्सीमेटली 30 पन्ने में आ जाएगा। सिंगल साइड पेज मत लीजिए, पोर्टेबिलिटी वुड बी डिस्ट्रॉयड, हैंडी नहीं रहेगा, काफी बल्की हो जाएगा। दैट इज बोथ साइड प्रिंटेड इज सजेस्टेड, इसको देखने से काम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बैंक्स तो ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विद यू, बट ऑल्सो टाइम टू टाइम मैं ये पीपीटी भी का इस्तेमाल लूंगा। मतलब आई विल बी यूजिंग दिस पीपीटी एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन ऑल्सो take this PPT as a fallback. So I would share this PPT with your seniors. So that is how I plan to go with the session. तो बुलेट पॉइंटर्स है 12 चैप्टर्स का, 60 पेजेस, बोथ साइड प्रिंट आउट ले लीजिएगा ना। उस पीपीटी का प्रिंट आउट लेने का दरकार नहीं है, बट इन केस यू नीड अ फॉल बैक, एक बार देखना है, ब्राउज कर सकते हो। सो रूल्स ऑफ द गेम, द कॉन्टेक्स्ट, द इकोसिस्टम आई हैव शेयर्ड विथ यू। Now let me quickly see whether do you have any questions or not. Time to time I will be keeping a tab on the chat messages you are पुटिंग अक्रॉस। तो किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते, मैं बस चैट विंडो पर देख लेता हूँ, चैट में कुछ कुछ दिया गया है। ओके श्वेता मैम, यस। अच्छा पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैडम, आफ्टर द सेशन आई विल बी शेयरिंग विद यू, वो आपको मिल जाएगा। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दैट इज देयर। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा हम लोग सबसे पहले ना कुछ कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। थैंक यू मैम। I will be sharing my contact details also. In case you have any doubts, you can always come back to me. So this is my coordinates. Here lies my contact details. ठीक है? So now
I was made to understand that most of you have this broking background. तो हम लोग फिर भी एक बार थोड़ा बेसिक से एक बार शुरू कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे है, क्या है, नहीं है, ऑल दोस डिटेल्स. So it would not going to cost us some good, maybe initial 10-15 minutes, but that would be worth spending so that everybody comes on the same page. So for a broader understanding of the things, देखिए there are two parts to this entire ecosystem of finance. सब जो बोलो, एक तो इकोनॉमी जहाँ पे आप एंजल ब्रोकिंग से हो, मेजबान म्यूचुअल फंड से हो, देयर आर आल्सो अदर इंडस्ट्रीज. So they are making their uh, business endeavors true in the economy. So वो अपना इकोनॉमी में अपना काम कर रहा है. और if the company is listed, then obviously if the economic activity is going well, उसका स्टॉक मार्केट में भी एक अच्छा खासा असर आएगा और एक तो मतलब पॉजिटिव इम्पेटस आएगा, प्रोवाइडेड इकोनॉमी इज शेपिंग अप वेल. तो ये कहा जाता है इफ द इकोनॉमी इज डूइंग वेल स्टॉक मार्केट एक कोरिलेशन आएगा, इफ द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल स्टॉक मार्केट में उसका अच्छा या आउटपुट नहीं आएगा. सो not all the companies are listed on the exchange platform, but yes, popular ones on the national front, NSC hai, BSC hai. So there are some good, if I'm not wrong, some good 5-6 thousand stocks are there listed. Stocks in the sense the companies that are listed. So NSC happens to be the largest and the BSC happens to be the oldest. तो इकोनॉमी में कामकाज अच्छा रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन आएगा. कहावत है कि it goes like this: in the short term market is a this market is a voting machine, in the long term it is a weighing machine. So we need to remember these things because not for the exam purpose but for our own conviction. शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी और मार्केट का कोरिलेशन उतना दिखता नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में दे आर वेरी कोरिलेटेड. अगर इकोनॉमी में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं आएगा. सो नॉट नेसेसरली मार्केट मतलब शेयर, मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी लिस्टेड है, हम देखेंगे इसको. नाउ एनएससी में तो आपका कुछ नहीं करके भी 2-2.5 हजार के ऊपर कंपनी है, बीएससी में भी लगभग 4-5 हजार कंपनी होगा. और देर आर ऑल्सो अदर सेगमेंट्स, एसएमई सेगमेंट्स एंड थिंग्स. सो ये एक्सचेंज का परव्यू है, हम उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं एक्सचेंज में कितना कंपनी है नहीं है. बट यस, exchange platform is like a marketplace. Buyers and sellers come, they express their intent in order buying and selling of stocks, and they place the order through the members. और exchange के प्लेटफॉर्म में प्राइस डिस्कवरी होता है. कोई 10 में खरीदना चाहता है, कोई 11 में खरीदना चाहता है, फिर अकॉर्डिंगली प्राइस मैच होके एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी होता है. तो देयर ऑब्वियसली एज यू कुड सी इन द मार्केट प्राइस मूवमेंट होता रहता है. नाउ से फॉर एग्जांपल एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स से लेके इन अ कलेक्शन ऑफ यू नो एक पोर्टफोलियो बना के फंड मैनेजर पकड़ लीजिए कुछ स्टॉक्स लिया है. तो इन म्यूचुअल फंड यू डोंट नीड डीमैट. हम क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको. ईटीएफ बोल के एक चीज है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आई विल बी कमिंग टू दैट. वहां पे डीमैट कंपलसरी है, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड डीमैट इज नॉट कंपलसरी. सो आप जो भी अपना तरफ से पोर्टफोलियो इस लाइक अ टी वेंडर, आपको रोड साइड टी स्टॉल के पास जाओगे, ही इज ओनिंग द टी लीव्स, ही इज ओनिंग द मिल्क, ही इज ओनिंग द sugar, all those things. So यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का भी वही है, यू आर नॉट ओनिंग द शेयर्स बट यू आर ओनिंग द यूनिट्स. हम इसको यूनिट्स बोलते हैं. So there are two parts to mutual funds, primarily units है, and there are NAVs, net asset value. The net asset value as in the price of a single unit. So इनको मल्टीप्लाई करने से जो चीज आता है हम उसको बोलते हैं फंड वैल्यू. इसको हम बोलते हैं फंड वैल्यू. We can give you an example, not to worry, and my eyes and ears are open on the chat window. कुछ क्वेरी आएगा तो डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा. Say for example, NAV is going around 10 rupee 90 paisa. You have invested 1 lakh. You have invested 1 lakh, that is your investment. कुछ भी क्वेरी होगा आप कट पेस्ट कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट. सो एज यू कुड सी, आपने अगर 1 लाख रुपया दिया है एंड NAV इज 10.9, तो नंबर ऑफ यूनिट्स वुड बी 9,000, close to 9,174.31. एंड म्यूचुअल फंड्स की एडवांटेज है, यू कैन गेट फ्रैक्शनल यूनिट्स. नाउ एज्यूमिंग एंड प्रिज्यूमिंग कि
आपका इतना यूनिट्स है पर नैव शुड्स अप टू 12, ऐसे ही पकड़ लीजिए। द फंड वैल्यू वुड बी ये number of units into 12, so you got some appreciation, right, from 1 lakh to, if I'm not wrong, it comes to 1,10,092. So it's the, as the price of the NAV moves, आपका डाउन साइड भी हो सकता है, डाउन साइड में गिर जाएगा, but this NAV units and fund value, this concept should be clear to you all. So in mutual funds, one learning is that you can get fraction maybe units. Stock in stock market that is not possible, but in mutual fund that is possible. You get fraction units. Um, so let me quickly get over here. सो अच्छा, यहाँ पे चैप्टर अगर देखेंगे आप तो आपको पढ़ना कैसे, चैप्टर 1 में कुछ सब सब जगह में बुलेट पॉइंट्स रहता है, यू नीड टू ब्राउज थ्रू द बुलेट पॉइंट्स। मतलब देखो, मतलब 350 पेजेस का समरी है इसमें, फिर से इसमें और समरी करने से मुश्किल हो जाएगा। सो टेक योर टाइम आउट टू गो थ्रू देम। कुछ कुछ जगह में दिक्कत हो सकता है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस, और यू कैन जस्ट डू सम R&D with maybe some AI tool or Google, द ओल्ड स्वीट गूगल ब्राउजर जो है उसमें आप काम कर सकते हो, ढूंढ सकते हो गूगल सर्च इंजिन में। बट अदरवाइज एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आंसर हम लोग की तरफ से दिया जाएगा उसको आप देखो। जो अनरेटिफाइड सोर्सेज है, जैसे पब्लिक मीडिया में बहुत सारा है, अगर आपको लगता है सोर्सेज रेटिफाइड देख सकते हो, अदरवाइज इट इज बेटर टू अवॉइड। नाउ एक क्वेश्चन आ सकता है से, रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रियल रेट, नॉमिनल रेट, इंटरेस्ट रेट, राइट? तो say for example, if FD is giving you 7%, this we call this as a nominal rate। इसमें तो कुछ दिमाग लगाना है नहीं, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल RR, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। बट एज्यूमिंग इन्फ्लेशन इज समथिंग अराउंड, ऐसे ही बोल रहा हूँ, समथिंग अराउंड 4%, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न वुड बी लेस देन, मतलब आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो है, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द इन्फ्लेशन जो रिटर्न मिलेगा, दैट वी कॉल एज रियल रेट ऑफ रिटर्न। ये सब सवाल कुछ दे सकता है, एंड सम्स ज्यादा तो देगा नहीं, पर दिस इज हाउ यू शुड थिंक, एंड दिस इज सम ऑफ द वेरी बेसिक, अगर आप फिनेंस में हो तो। सो दिस पॉइंट्स आई बिलीव वुड बी कंफर्टेबल फॉर यू। क्या लिखा है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्यों हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ पैसा ज्यादा मिल जाएगा, दैट शुड नॉट बी द वे। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस, देन यू डोंट शेक अवे बाय द मार्केट मूव्स। मार्केट का इधर उधर मूवमेंट से आप निकलोगे नहीं। Obviously there are goals like children education, second home, foreign trips, all those things. You need to prioritize the goal, और उस गोल के बेसिस पे यू नीड टू एलोकेट योर फंड्स। तो ऑब्वियसली लंबा टाइम जो गोल होगा वहाँ पे टाइम बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन रहेगा। इन्फ्लेशन वी नीड टू टेक इनटू कॉग्निजेंस। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स दैट वी नीड टू गो थ्रू। मैं आऊंगा उसमें, डोंट वरी। नाउ लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू some of the risk as we know। So nominal rate return जो भी मैंने बोला हूँ ये यहाँ से लिया हूँ। So these things have been clearly mentioned। I strongly recommend at the cost of repetitions, इसका प्रिंट आउट आप थोड़ा ले लीजिएगा बोथ साइड करके, if possible स्पाइरल भी कर लीजिएगा या तो स्टेपल कर लीजिए, so that the pages don't come out। As you could see on the screen, there is a terminology known as credit risk। आएंगे इसमें लिक्विडिटी रिस्क। व्हाट इज दिस लिक्विडिटी रिस्क? मतलब जब पैसे का दरकार है, हमको मिल नहीं रहा है फॉर वट एवर रीजंस, व्हेन आई नीड द फंड, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश, हो नहीं रहा। So liquidity risk means it's difficult to sell an investment when desired, or it has to be sold below its fair value, or it cannot be sold partially। In the sense, एक साथ आप आराम से अच्छा भाव में नहीं निकल पा रहे। There is a liquidity issue। Liquidity risk is high in real estate। We all know that। एक शेयर बेचने के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, because there are buyers available on the other side। एक्सचेंज buyers को लेके आ जाता है, या buyers एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म में आ जाता है। But if something is not getting traded on the exchange platform, तो थोड़ा सा उसका प्राइस डिस्कवरी में, और फॉर दैट रीजन लिक्विडिटी में थोड़ा इश्यू रहता है। क्रेडिट रिस्क मतलब किसी को मैं उधार दे रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ये बंदा हमको पैसा टाइम पे वापस कर देगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं रहता है। इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स देयर इज नो क्रेडिट रिस्क।
So there's also one more type of risk known as a market risk. So हम आएंगे इसमें, but just for a thought, would like to give you a thought where you can think upon. कि G6, we know there is no credit risk. Government securities. There are funds known as GSEC funds. या gilt funds. Gilt funds, they are popular known as gilt funds. तो अगर डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क नहीं है, तो वहां पे डिस्क्लेमर देने का क्या दरकार है? म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. सो बिकॉज देयर इज अ रिस्क, देयर मे नॉट बी अ क्रेडिट रिस्क है नहीं, पर कुछ रिस्क है, एंड एज वी कुड अंडरस्टैंड इट इज अ मार्केट रिस्क दैट इज देयर. सो मार्केट का क्या है? प्राइस डिस्कवरी हो गया तो होगा. बायर एंड सेलर कुछ भाव बोलते हैं, मे बी द फेयर वैल्यू शुड बी 100 एंड द बायर एंड सेलर हैज एग्रीड टू गेट द डील डन मे बी एट 95. तो 5 रुपया नीचे काम हो रहा है एंड पीपल गेट टू सी द प्राइस, और थोड़ा डर जाता है वो. तो इसको हम मार्केट रिस्क बोलते हैं. तो आप इफ यू कुड जस्ट गो थ्रू द लाइंस along with me, I am reading for the benefit of the batch. Market risk is a type of risk associated with the market or as a whole rather than with the individual stocks, business sectors. It is a risk that when the overall market lose value rather than one or more stocks or sector. तो अब समझ में आ रहा है? तो वो जो ओवरऑल सेंटिमेंट जिसको अफेक्ट कर रहा है ओवरऑल मार्केट को, उसको हम मार्केट रिस्क बोलते हैं. प्राइस डिस्कवरी होता है, नीचे में आ जाता है तो यू फील बैड, मैंने 100 में लिया, अभी 90 हो गया. So this is a kind of risk you are going through. So that is what we call this market risk. Uh, so ऐसे आपको देखना है. I would be going through interest rate risk, bond prices, ये काफी important है. But prior to that, on a light-hearted note, would take you through a couple of biases. Maybe we can quickly go through these biases. So when you invest, अच्छा, forget about investments and other stuff. मैं हम लोग एक एक करके कुछ biases लेके बात करते हैं, but do not take me personal. Maybe I will be giving you some, not purposefully, some popular examples. Some of the examples would be, not uh, to be discussed in an open forum, but just for our understanding. This is a closed discussion. Occasionally, we get to see that uh, I'm taking these examples from daily walks of life. कि during marriage, couples or the parents of the couples preferred कि वो अपना बिरादरी से शादी करें. राइट. सो बाहर जाने से क्या मतलब, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कल्चरल गैप हो सकता है, मिसमैच हो सकता है. सो वी कॉल दिस काइंड ऑफ बायसेस, जो अपना बिरादरी से करे, फेमिलियरिटी बायस. राइट रॉन्ग का बात नहीं है, बट पीपल रियली वांट्स टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. जो लोकेशन में पोस्टिंग है वहीं पे रहे, बाहर जाके फिर प्रमोशन लेके भी जाएगा तो दिक्कत है, वहां पे क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ पे सोएगा, किसके साथ रहेगा, ऑल दोस थिंग्स. सो दिस अबाउट दिस फेमिलियरिटी बायस. In our core example, it could be person investing in FD. एफडी में कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स में आना नहीं चाहता. इज फेमिलियर विद एफडी रिटर्न्स, इज कंफर्टेबल. फेमिलियरिटी मतलब कंफर्ट फैक्टर है, और उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है. These one is the familiarity bias. You get to see one thing is there as hard mentality, HERD, not HARD. तो जो सब कोई कर रहा है वही वो करना चाहता है. जैसे आमिर खान साहब का एक फिल्म आया था, जो जीता वही सिकंदर, गाने का लाइन भी है, जो सब कोई करे वो हम क्यों करें. सो वो सोचना चाहिए, पर उसको शायद उसको कॉन्ट्रेरियन बिहेवियर बोलेगा, पर जो जो सब कोई कर रहा है वही करना चाहता है. देयर इज अ हार्ड मेंटेलिटी. So these are some of the biases. One bias is known as recency bias. Recency bias in the sense all these biases get exposed to actions. आप कुछ काम करते हो, वहां से bias निकल के आ जाता है. तो recency bias मतलब people give more importance to the recent past. तो based on the recent facts and figures, वहाँ पे क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिसेंसी बायस दीस डेज इज इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर. वो बहुत भागा तो आदमी लोगों को लगा ये ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा, ये चलता रहेगा. अभी अभी बढ़ा, कल भी बढ़ा, परसों भी बढ़ा, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं. अभी तो थोड़ा क्रेज खत्म, थोड़ा बहुत इनिशियल बाउट्स ऑफ वोलेटिलिटी हैज बीन अरेस्टेड आई बिलीव. बट दैट इज अबाउट दिस रिसेंसी बायस बिकॉज ऑफ 4 साल 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था गोल्ड सिल्वर का, पीपल वुड हार्डली रिकलेक्ट. पर रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है वो इजी है, और उसके बेसिस पे दे ट्राई टू टेक डिसीजन. इट इज नोन एज रिसेंसी बायस. लॉस अवर्शन इन द सेंस पीपल ट्राई टू अवॉइड लॉसेस. चलिए एक तो छोटा सा मैं आपके लिए सवाल डालता हूँ. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी mentally. Right. So you have 1 lakh of investment. Two investments, 1 lakh each. तो आपको जवाब देना पड़ेगा. आई वुड बी, मैं चैट विंडो में इंतजार करता हूँ. दिस इज सिनेरियो 1.
and this is scenario 2. So what happened? Maybe after X days, after a few days, whatever the case may be, the investment 1 becomes 80,000 and investment 2 become 1.10 lakhs. Now you need to break 70,000. आपको 70,000 रुपया चाहिए होता है, एंड यू कैनॉट लिमिटेशंस इन द सेंस आप दोनों अलग अलग करके तोड़ नहीं पाओगे, आपको कोई एक तोड़ना पड़ेगा, एक तो लिक्विडेट करना पड़ेगा. यू नीड 70,000, यू नीड दिस मनी, समथिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ नीड 70,000, और यही से आपको उतारना पड़ेगा. सो विच वन यू गोइंग टू पिक, 1 or 2? आई एम वेटिंग इन द चैट विंडो, प्लीज कम. आई बताइए. होप आई एम ऑडिबल. अच्छा, हमको सुनाई दे रहा है? Am I audible? Yes, sir, you're audible. ओके, मैं कुछ स्क्रीन में लॉगिन का मैसेज आ रहा है. Okay, so most of you are saying 1 with couple of exceptions as 2. So the thought process goes like this. Yes, you are right. आपको 1 को ब्रेक करना चाहिए, 2 को नहीं. बट पीपल जनरली, लेमैन क्या बोलता है, मैं इसको तोड़ूंगा, ये तोड़ने से क्या होगा? मतलब पीपल हैव वांट टू हैव दिस गुड फील गुड फैक्टर कि मैंने प्रॉफिट से पैसा उठाया हूँ, लॉस से नहीं. सो इसका चलते हुए क्या हो सकता है, द थिंग्स जो इज गोइंग डाउन, अंडर ऑल प्रोबेबिलिटी कीप्स ऑन गोइंग डाउन. जो अच्छा कर रहा है हो सके और भी अच्छा करे. और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज क्या है, व्हेन यू एक्सेप्ट कि मैं हमसे गलती हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट हमसे गलती हो गया है. सो पीपल प्रोकास्टिनेट, पीपल हेजिटेट टू बुक द लॉसेस, बिकॉज लॉस बुक करना मतलब सर झुकाना, हमसे गलती हो गया है. सो दैट वे दिस इज अ बायस नोन एज अ दिस इज अ बायस नोन एज loss aversion. So all these biases have been explained. Familiarity bias, unknown devil is better than. मैं तो बहुत जगह में देखा हूँ, बॉस अच्छा है बोल के वो छोड़ नहीं रहा है, बिकॉज ही इज वेरी अनकंफर्टेबल. नया बॉस आ जाएगा तो क्या होगा, अच्छा सैलरी मिल रहा है फिर भी ही डोंट वांट, ही और शी डोंट वांट टू टेक द द लीप ऑफ फेथ. वहां पे भी अच्छा होगा. तो आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू फ्रीक्वेंटली चेंज जॉब्स, वो नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ. पीपल आर वेरी वंस दे आर कंफर्टेबल विद द familiar stuff, they don't want to change. What we know is safe, what we don't know is not, right? Anyway, so these are some of the bias. One एक bias में और भी explain करना चाहता हूँ, that is available heuristics. Available heuristics in the sense that whatever informations, uh, in order to when you take a decision, you need to have informations. But available heuristic is a bias where you are considering informations, but in a very scattered manner, not in a very structured manner. And in the process, since it is very whimsical, randomly आप कुछ parameters देख के you are deciding ये क्या है वो क्या, all those things. So not very structured thought process is there. So it's possible that may incur some headwinds, some loss हो सकता है. So that is about available heuristics. So let's just quickly read this slide. Maybe it would be much more easier for you to comprehend. So relying on examples or experience that come to mind immediately, जैसे बताया हूँ, एनीथिंग दैट इज सर्फेसिंग योर माइंड, आप उसके बेसिस में कर रहे हो. आंखों के सामने में आ गया, कान में सुनाई दिया, से साइमल्टेनियसली आप दुकान में जाके, साइमल्टेनियसली एज इन आप भी खरीद रहे हो, बाजू में जो बंदा बैठा है वो भी मोबाइल खरीद रहा है. नाउ ही इज आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस टू द शॉपकीपर, एंड इमीडिएटली आपको लगा नहीं ये क्वेश्चंस इज एप्लीकेबल टू मी आल्सो, मेरा मोबाइल के लिए व्हाट विल बी द आंसर्स अगेंस्ट दिस क्वेश्चन. सो दैट वे, मतलब वी आर नॉट प्रिपेयर, थोड़ा हैफाजेटिकली काम कर रहा हूँ, रैंडमली कुछ इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. सो वो होना नहीं चाहिए. तो इनफ रिसर्च इज नॉट अंडरटेकिंग फॉर इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस व्हिच लीड्स टू मिसिंग आउट ऑन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन. इसलिए इसको बोलता है अवेलेबल ह्यूरिस्टिक्स. सो ऐसे ही कॉन्फर्मेशन बायस, मतलब आप फीडबैक तो ले रहे हो पर ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड ये सही है ये गलत है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन टू हैपन. आपने एक फंड खरीद लिया, ये फंड अच्छा है, आपने, you have concluded. Now you are asking for the feedback.
और कोई अगर बोलेगा ये फंड खराब है, आप सुनोगे नहीं. So you are just seeking out for information, so you tend to miss out on information or critical information because you are a bit too biased. So bias का मतलब ही वही है कि प्रॉपर रैशनल मेकिंग चीज हो नहीं रहा है. कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो जो आएगा. अच्छा, ये तो पहला वाला क्वेश्चंस का SC2 बोल के तो लक्ष्मी चांद और श्वेता मैडम सबको ने जवाब दिया है. तो दोज हैव आंसर टू एज आई हैव शेयर विथ यू, वो लॉस अवर्शन में, वो आइडियली ऑन द NISM पर्सपेक्टिव में, इसमें द आंसर वुड बी कि एक सेकंड, बहुत सारा विंडो है. तो ऑब्वियसली इस यहाँ से पैसा उठाना नहीं है. लॉजिक बीइंग, चलो एक तो अच्छा से एग्जांपल देने से मेरे ख्याल से होगा. सिर्फ पकड़ लीजिए कोविड चल रहा है, एक बंदे का ऐसे समझो, राइट? आई थिंक दैट विल बी बेटर एग्जांपल. कोविड चल रहा है, दिस इज द सैलरी ऑफ इंडिविजुअल्स, और नहीं, दिस इज आउटपुट, आउटपुट ऑफ स्टाफ, राइट? स्टाफ इतना काम किया, 1 लाख रुपया काम किया है. और अच्छा, ये आउटपुट है और ये इनपुट है. सैलरी कितना लिया है? इनपुट ऑफ स्टाफ, इनपुट टू द स्टाफ, मतलब सैलरी का मैं बोल रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ. 1 लाख रुपया दोनों ने लिया है. एक 80,000 का काम किया, एक ने 1,10,000 का काम. सो द गाय हु इज परफॉर्मिंग इन योर टीम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी, उसको आप क्यों छेड़खानी कर रहे हो? उसको छोड़ दो. जो नीचे आ रहा है उसको थोड़ा रिव्यू करना है, देखना है, क्लोज अटेंशन में रखना है. अगर सुधरता है सही है, नहीं तो निकालो. सो दैट वे, दैट वाज द एजेंडा, और कुछ नहीं था. ये बोलने की कोशिश था. दैट इज अबाउट लॉस अवर्शन, वी हैव डिस्कस लॉस अवर्शन. तो ये हर एक सारे सारे के सारे चीज का इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है. सो चलिए, ऐसे आपको पढ़ना है. हार्ड मेंटेलिटी, द डायग्राम स्पीक्स इट ऑल. कि सब अंधा है, एक चल रहा है, एक को देख के दूसरा बंदा भी चल रहा है. डजंट मेक सेंस. लॉस अवर्शन आई हैव शेयर, ओवर कॉन्फिडेंस तो नाम से ही पता चल जाएगा. हाँ, ठीक. चलिए, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग ने एक तो चीज बताएंगे आपको. अभी आप शेयर यू तो रियल रेट ऑफ रिटर्न वी हैव शेयर, विच मैं स्क्रीन तो शेयर कर रहा हूँ. नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न वी हैव कवर्ड. नाउ इस CAGR बोल के एक चीज है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. इसको थोड़ा समझते हैं. सो एज्यूमिंग बिगिनिंग नैव, बिग नैव मतलब बिगिनिंग नैव, ये इन नैव मतलब नैव नेट एसेट वैल्यू, नंबर ऑफ इयर्स, ऐसे ही बोल रहा हूँ. तो एक बार हो सके कुछ सम्स आ सकता है बेस्ड ऑन द, मतलब फॉर द कैलकुलेशन पर्पस. सो CAGR इज इंपॉर्टेंट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है नहीं है. 10 रुपया का ना पकड़ लीजिए, 11 रुपया, छापी को छोटा सा लेते हैं. 10 रुपया का नाम हो जाता है 14 रुपया. 40% इंक्रीमेंट हुआ है, और ये 3 साल में. सो मैं क्विकली इसको सेग्रीगेट करके रख देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो ना. CAGR का एक फॉर्मूला होता है. CAGR का फॉर्मूला है एंडिंग वैल्यू बाई बिगिनिंग वैल्यू. तो 14/10, 14/10 होल टू द पावर 1/3 -1. दिस अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. आप कर सकते हो. 14/10 होल टू द पावर 1/3 -1. तो ये थोड़ा, और इसको आप डायरेक्ट लिंक भी कर सकते हो इससे, पर दिस इज हाउ इट वर्क्स. जस्ट आपका जानकारी के लिए यह है, आप एक बार देख सकते हो. एंडिंग वैल्यू बाय बिगिनिंग वैल्यू. सो दिस इज एंडिंग वैल्यू, मे बी. अच्छा, दिस इज एंडिंग वैल्यू, मैं लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो. दिस इज एंडिंग वैल्यू, दिस इज बेंगवाली वैल्यू, दिस इज बिगिनिंग वैल्यू, सॉरी. तो मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंचा और कितना साल में पहुंचा. तो अगर 6 महीना होगा तो दिस दिस इज क्रिटिकल. ये 1/n जो है ये क्रिटिकल है. दिस इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ईयर्स. ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ईयर्स. याद रखो. तो 6.6 बोलेगा, मतलब अगर 6 मंथ्स बोलेगा, इफ इट इज 6 मंथ्स, इफ इट इज 6 मंथ्स, तो आपको इसको कन्वर्ट करके 0.5 डालना है. इतना याद रखो. अब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल पे कन्वर्ट करना है. सो दैट इज द CAGR. জাস্ট আ সেক. ছবি একটু সেশনে আছি, বেরিয়ে ফোন করছি. কিন্তু এখন তো সেশন চলছে. ঠিক আছে, দাঁড়াও, দেখছি দেখছি.
হুম, দেখছি, একটু সময় দাও, একটু সেশন চলছে অ্যাঞ্জেল, একটু সময় দাও, আমি দেখছি দেখছি। দেখছি। সরি। সো सो इट गोज लाइक दिस कि बिगिनिंग नैव एंडिंग नैव जो आपको बताया हूँ उसके बेसिस पे चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस है तो बताइए। अदरवाइज इट इज सिंपल। ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एंड एवरीथिंग इज देयर इन द स्टडी मटेरियल्स, डोंट वरी। हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको बता देंगे। किसी को अगर कुछ चीज का क्वेरी वेरी है तो जरूर डालिए। सो हम CAGR कंप्लीट किया है, हम लोग आएंगे कुछ ऐसे एलोकेशन आज ही खत्म करेंगे। शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी इजी, मैं एक एक करके करूंगा। आई डू नॉट बिलीव इन गोइंग थ्रू द चैप्टर सिक्वेंशियली, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं कवर करूंगा। नॉट टू वरी ऑन द सेम। आपका कुछ क्वेरी है, कुछ इनपुट चाहिए होता है तो आप बता दीजिए। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ भी चीज है, आप बोल सकते हो। ओके। सो नाउ हम लोग थोड़ा सा जंप करेंगे। XRR और एक तो मैं बताऊंगा XRR के साथ क्या डिफरेंस है, बी कवरिंग दैट। और आपका कुछ क्वेरी के लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, कुछ भी चीज का जो चीज है अभी तक। नाउ यहाँ पे, अच्छा, नाउ लेट अस कम टू एसेट एलोकेशन। अच्छा, एक तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर? CAGR का 0.5 वाला कैलकुलेशन प्लीज रिपीट। ओके श्वेता मैम, इट गोज लाइक दिस कि आ, आपका ना यहाँ पे अच्छा ठीक है, आप कैसे समझा, ऐसे ऐसे चलते हैं, चलिए, डोंट वरी। CAGR फॉर्मूला, CGR फॉर्मूला अगर देखेंगे हम यहाँ पे इमेज में क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे होल टू द पावर 1/t लिखा हुआ है। कोई भी फॉर्मूला गूगल में देखें 1/t, तो t इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था, अगर 6 महीना है तो 6/12.5, मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा था। अगर 7 महीना है तो 7 मंथ्स, हाउ टू प्लग इन टू द फॉर्मूला। 7 मंथ्स को या फिर एक्सप्रेस इन 7/12, दैट वाज द 0.5833, वो लिखना है। CAGR का एक तो क्वेश्चन आ सकता है, सो दैट वाज द इंटेंट, नथिंग एल्स, ठीक है। आई बिलीव यू गॉट इट ऑन दैट, सो दैट इज दैट। ओके। नाउ इसमें आप देखिए ये स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ये एसेट एलोकेशन के बारे में कुछ हम लोग बातचीत करते हैं। मैं बहुत सिंपल से बता देता हूँ, इट इज नॉट टफ। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन याद रखने के लिए प्लीज रिमेम्बर द एस। एस मतलब सेल्फ, खुद को, खुद के लिए। तो इफ आई एम डूइंग एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन माई पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, एक घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, दैट इज एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, दैट इज स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। इफ आई एम प्लानिंग ऑन द फैक्ट दैट कौन सा सरकार सत्ता में आएगा, गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा, ऑल दोस थिंग, दैट इज टैक्टिकल। राइट, रूलिंग पार्टी है वो आएगा कि नहीं आएगा, अभी इंटरनेशनल में ये सब डायलेमा चल रहा है, डॉलर अच्छा करेगा, ये सब जो क्वेश्चन है। तो खराब सही का बात नहीं है। वंस यू डिसाइड ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड यू इन्वेस्ट, दैट इज टैक्टिकल। वंस यू डिसाइड ऑन योर सेल्फ गोल्स एंड यू डिसाइड, से फॉर एग्जांपल अभी बच्चे की उम्र है 4 साल, 18 साल में पैसा चाहिए। अभी का आज का दिन में गोल्ड प्लानिंग में मे भी 10 लाख है, आने वाला कल में वो लगभग 3.5 to 4 times हो जाएगा। तो हमको 10 लाख की जगह में 40 लाख का प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके लिए SIP फॉलोना, ये चीज चाहिए। दैट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। और टैक्टिकल हुआ टाइमिंग। तो आप स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन आपका यहाँ पे लिखा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू। ठीक है। सो बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल गोल्स इतना याद रखो, और उसके लिए बहुत टाइम होराइजन है, आप अकॉर्डिंगली अलग कर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली
इंडस्ट्री में स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन हो नहीं रहा है। सब कोई बोल रहा है ये भागेगा, गोल्ड भागेगा, सिल्वर भागेगा, पर जो भागना है भागेगा, पहले तो खुद को भगाना पड़ेगा। खुद का तो जिंदगी संवारना पड़ेगा, खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। सो बहुत दी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट। टैक्टिकल वो सब बात है, मार्केट एसेट क्लास क्या मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। बहुत दिन हो गया आईटी पिट रहा है, आईटी कब आगे बढ़ेगा, ऑल दोस थिंग्स। तो सीजन इन्वेस्टर में खराब का नहीं बोल रहा हूँ, जो सेक्टरल फंड्स है, थीमेटिक जो सेक्टरल है प्राइमरली, वो सब चीज टैक्टिकल करने के लिए सही है। इसलिए आप देखेंगे कि आ, जो सेक्टरल फंड्स है उसमें एग्जिट लोड भी काफी कम रहता है, बिकॉज उनको टाइम करना है। टी फॉर टैक्टिकल, टी फॉर टाइम। रीबैलेंसिंग है कि रीबैलेंसिंग में क्या है कि रीबैलेंसिंग में आपने 50-50 इक्विटी का डिसाइड कर लिया, इक्विटी 50 डेट 50, बट आप एक साल के बाद वो तो चेंज हो जाएगा। इसमें कोई सम्स नहीं देगा, पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पर चेंज हो जाएगा ना, पकड़ लीजिए 50 रुपये इक्विटी बढ़ के 70 हो गया, डेट थोड़ा कम बढ़ा, तो आपको फिर रिबैलेंसिंग करना पड़ेगा। जो ज्यादा बढ़ गया उसको कम घटा के बॉन्ड में डाला है, तो वी कॉल दिस इज रीबैलेंसिंग। rebalancing. Investor may select any of the asset allocation approach. However, they may need to review it. उसको दोबारा पुराना रेशियो पे लेके खड़ा करना है, बिकॉज अदरवाइज एक साल के बाद हो सकता है रेशियो बिकम 70-30, शुरू किया था 50-50 से। दैट वे, तो दैट द थ्री स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशंस आर देयर, थ्री एसेट एलोकेशंस आर देयर, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, रिबैलेंसिंग, याद रखिएगा, ठीक है। आ, अच्छा, क्वेश्चंस आ गया। ओके, यस, थैंक यू मैम, वेलकम, यू वेलकम। क्वेरी आएगा तो क्वेरी करते रहिएगा, एंड आई वुड बी पर्पसफुली कवरिंग सम हार्ड टॉपिक्स जो कल सुबह के लिए नहीं रखेंगे, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। और कुछ कैलकुलेशंस भी आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसके लिए। और क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्वेश्चन बैंक दिया गया है, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, डोंट वरी। मैं थोड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन के काम करना चाहता हूँ आपसे, और उसके बाद थोड़ा सा जनरली एनएसएम 5 में ये मैं करता नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, बिकॉज दीज डेज यू नो अभी इंडस्ट्री जो हमको लग रहा है ना, इंडस्ट्री चेंज हो रहा है रेवेन्यू पर प्रोडक्ट से रेवेन्यू पर क्लाइंट। वो क्लाइंट से कितना बिजनेस आ सकता है वो इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को कितना एसआईपी देना है वो इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को नीड्स समझने के बाद। नहीं तो ये अगर वो ऐसे नहीं करेंगे, हम रिटर्न to चेस करेंगे, तो वी नॉट बी एबल टू एसआईपी वैसे हम लोग बड़ा नहीं कर सकते। मेरे पास अभी एक तो क्वेश्चन आया है, आ, तो वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक बंदा है, तो सम कैलकुलेटर्स वुड बी रिक्वायर्ड, वी कैन गेट होल्ड ऑफ वन। और इसके बाद हम लोग थोड़ा वो सब डिस्कस कर लेंगे, कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एग्जाम रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिस्क रिटर्न के हिसाब से देखेंगे, राइट। सो ऐसे कैलकुलेटर्स बहुत हैं, आई एम नॉट शोकेसिंग एनीथिंग, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास ये एक क्वेश्चन आया है, देखिए, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए, आप भी कैलकुलेट करके रख सकते हो। और ये क्वेश्चन गोज लाइक दिस। एज है 35, एसआईपी कर रहा है 15 साल के लिए। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ सम काइंड ऑफ आपको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं देगा उतना, पर वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सही रहेगा। तो आफ्टर एसआईपी 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स वो 2 लाख रुपया का एसडब्ल्यूपी कर रहा है। एसडब्ल्यूपी आपका चल रहा है लगभग 20 ईयर्स के लिए, रफली, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही मिला है, कैनॉट टाइप ऑल दोस थिंग्स डाउन। तो वो बोल रहा है एसआईपी अमाउंट कितना करना पड़ेगा, देखिए कितना क्रिटिकल है, ठीक है ना। एसआईपी अमाउंट हमको कितना चाहिए, ताकि मैं 15 साल के बाद ये करूँ। आप थोड़ा इसको कॉपी करके रखिए, थोड़ा सोचेंगे, मैं अभी आपको ब्रेक दूंगा, तो आप थोड़ा उसको भी कैलकुलेट करेंगे, आपका जो कैलकुलेटर्स है, और हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, रफली एक ग्रॉस लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले ठीक है, आप इसको कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लो। मैं थोड़ा सा जाता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग अभी थोड़ा रिस्क के बेसिस में जाता हूँ, रिस्क क्या है नहीं है। तो प्राइमरीली आप देखेंगे, इसको हम करेंगे जरूर, ठीक है ना। इसमें चलिए, अच्छा, यस, क्या, अच्छा,
म्यूचुअल फंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। तो आप देखो 37 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर। 37 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर। लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। मैं आऊंगा सब एक एक करके। व्हाट इज द डिफरेंस? लार्ज कैप का मतलब 80%, आई एम सॉरी 80% शुड बी इन लार्ज कैप। व्हाट इज लार्ज कैप? आई विल बी कमिंग टू दैट, डोंट वरी। तो 37 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड है, इसमें हम लोग टाइम देंगे, आज ही देंगे, ताकि तुम लोग थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। देखो डेट में इफ यू सी देयर 16 कैटेगरीज ऑफ डेट फंड्स आर देयर। ये सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स है रिटायरमेंट चिल्ड्रन के लिए, जहाँ पे कुछ लॉक इन पीरियड रहता है 5 साल का। और हर एक कैटेगरी में बारिंग फ्यू सॉलिटरी एक्सेप्शंस एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक ही फंड रख सकती है। इसमें म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में एक ही फंड रख सकते हैं, दो नहीं। फॉलोना फंड हाउस XYZ कंपनी लार्ज कैप में एक ही फंड रख सकते हैं, या कुछ भी नहीं रखेगा वो दूसरा बात है, पर रखना है तो एक ही। यू कैन कीप ओनली वन सिंगल फंड अंडर एवरी कैटेगरी, एक्सेप्शंस बीइंग सेक्टरल और थीमेटिक, और इसमें आप मल्टीपल फंड्स रख सकते हो। वैल्यू और कॉन्ट्रा में से कोई एक ठो रख सकते हो। तो जैसे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, कुछ फंड्स है, जैसे डायनामिक बॉन्ड फंड, एक फंड रख सकते हो। तो आई विल बी कमिंग टू दोस थिंग्स। एक बार आप इसका एब्जॉर्ब करो अपना एंड में, तब तक मैं भी थोड़ा इस क्वेश्चंस को भी देख लेता हूँ। और लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन किसको बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम वार्तालाप कर लेते हैं। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? इट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई CMP करेंट मार्केट प्राइस। जैसे रिलायंस विलायंस मेरे ख्याल से 18 लाख 19 लाख करोड़ का कंपनी होगा, तो टॉप 100 कंपनी इज लार्ज कैप। टॉप 100 कंपनी वी कैन डेजिग्नेट एज लार्ज कैप। फिर उसके बाद स्मॉल कैप 101 to 250, नेक्स्ट 150 कंपनी में आ जाएगा। तो एनीवे तो उसके लिए लार्ज कैप में मैं एक तो क्वेश्चन डाल सकता हूँ लार्ज कैप। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। लार्ज कैप इज टॉप 100 कंपनी, 101 to 250, नेक्स्ट 150 कंपनीज इज मिड कैप, एंड आफ्टर दैट स्मॉल कैप। राइट। सो हाउ डू डिफाइन लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, उसमें आएंगे, पर आपके लिए ये स्टडी मटेरियल्स रहेगा, आप जरूर देख सकते हो। जैसे लार्ज कैप हाउ टू डिफाइन 80%, तो 80% लार्ज कैप में रहेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू। पकड़ लीजिए 10,000 करोड़ का फंड है, 10,000 करोड़ का फंड है। 80% ऑफ 10,000 करोड़ इज 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ आपका ये 100 कंपनी में लगना चाहिए। बाकी 20% फंड मैनेजर डिस्कशन। दैट इज अबाउट दिस, जो आपको बोल रहा था कि लार्ज कैप स्मॉल कैप का जो चीज है वैसे आपको देखना है यहाँ पे। तो सिमिलरली लार्ज एंड मिड कैप, अभी मैं आपको बोलूंगा, अभी आप समझ जाओगे, ये थोड़ा मुश्किल है। यू नीड टू एब्जॉर्ब द थिंग्स एट योर एंड। लार्ज एंड मिड कैप मतलब 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप। ये हर एक सेबी का डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेबी 2018 में। 2017 के एंड में, 18 में ये म्यूचुअल फंड का कैटेगोराइजेशन आया था। तो डोंट वरी, हम आएंगे इसमें, सब सारे का सारा चीज देखेंगे। तो यहाँ पे तो ये वाला चीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, राइट। मल्टी कैप में क्या होगा? हाउ मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप इज डिफरेंट। मल्टी कैप में 25 25 25 है। 25 लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25 स्मॉल कैप। फ्लेक्सी कैप में ये पाबंदी है नहीं, फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन है, अकॉर्डिंगली वो इक्विटी एलोकेशन लेंगे। सो आई एम कीपिंग अ टैब ऑन माई Q&A विंडो। आपका कुछ भी क्वेरी आ रहा है प्लीज लेट मी नो। अभी तक तो कुछ क्वेरी नहीं है, ठीक है। सो देखो, एक क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का ड्रॉबैक्स क्या है? पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन होता नहीं है, लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। आप फोन करके नहीं बोल पाओगे कि हमको ना रिलायंस सही नहीं लग रहा है, रिलायंस से निकल जाए। यू कैन नॉट डू दैट। पोर्टफोलियो कैन बी कस्टमाइज, जो है आपको लेना पड़ेगा। वन ऑफ द लिमिटेशंस इज दैट चॉइस ओवरलोड, इसलिए शायद फंड ऑफ फंड्स भी आ गया। इतना ऑप्शंस है, तो इतना स्टॉक्स था, दिमाग चकरा गया, म्यूचुअल फंड में आ गया। इतना म्यूचुअल फंड आ गया, पीपल टेंड टू गेट कंफ्यूज।
सो मे बी दैट इज वाई यू नीड एन एडवाइजर, मे बी दैट इज वाई ऑल्सो आप कभी कभी फंड ऑफ फंड्स में भी जाते हो। तो फंड ऑफ फंड्स का अंडरलाइन में क्या रहता है? म्यूचुअल फंड रहता है। So we are not talking about the solution, but these are some of the limitations. You don't have control over cost. You cannot say नहीं नहीं salary कम कर दीजिए, employee का इतना नहीं होगा. So SEBI always dictate in terms of overall cost, individual cost पे आप आओ नहीं। हर एक फंड मैनेजमेंट फीस का लिमिटेशंस है, उसके ऊपर वो जा नहीं सकता है। स्टेइंग विद इन दैट लिमिट वो कुछ भी कर सकता है, और कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। सो दिस आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड। सवाल आ सकता है, मे आई गेट सम थम्स अप? थम्स अप अगर नहीं भी देते हो, कम से कम हाँ समझ में आ रहा है। इफ आई आस्क यू कि वेदर द थिंग्स आर पैलेटेबल एट योर एंड, सब समझ में आ रहा है? अगर सब समझ में आ रहा है, ओके टाइप कर दीजिए चैट विंडो में, ओके, जस्ट टाइप ओके, सो दैट हमको समझ में आ जाएगा यू ऑल आर देयर। यस, जस्ट टाइप ओके। तो 1 2 3 4 4 5, और आपका तो फौज काफी बड़ा है, तो इतना कम क्यों? 74 पीपल आर देयर। पर ठीक है, जो भी है साथ में रहो, देखते रहो तो सुविधा रहेगा। डोंट वरी, मैं सब चीज कवर करूंगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ देम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर एक्नॉलेजमेंट। सो नाउ एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सवाल आने का संभावना कम है। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कोई भी बिजनेस के लिए। कि पकड़ लीजिए ओला उबर जो काम करता है, इसको धंधा धमा बढ़ाने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट का दरकार नहीं है। वो कोई एक शहर में जाएगा, होटल लेगा, कैब ड्राइवर को बुलाएगा, गाड़ी तो उन लोगों का खुद का नहीं है, ऐप में लॉगिन करा दिया, काम बिजनेस शुरू। तो तो म्यूचुअल फंड में वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जो भी रिसर्च एनालिस्ट है जो देख रहा है, गाय हु इज मैनेजिंग 1000 करोड़ कैन विद द सेम लॉजिक ही कैन थिंक ऑफ मैनेजिंग मे 5000 करोड़ ऑल्सो। लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट, जरूरत के टाइम पे म्यूचुअल फंड आप लिक्विडेट कर सकते हो, लोन ले सकते हो। जब आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स डेफर। म्यूचुअल फंड इज नॉट टैक्स फ्री बट टैक्स फ्रेंडली। कन्वीनियंट ऑप्शंस है, एसएमएस व्हाट्सएप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रेगुलेटरी कंफर्ट है, सेबी इज देयर, यू कैन नॉट डू एनी हैंकी पैंकी विद द इन्वेस्टर्स। एंड ऑब्वियसली सिंपल पावरफुल टूल्स लाइक एसआईपी एसडब्ल्यूपी आर देयर। प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज देयर। अब यहाँ से अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अब देखो निफ्टी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करके एक निफ्टी पोर्टफोलियो बनाने के लिए जाओगे, हो सके, आई एम नॉट श्योर, करने के लिए कम से कम तो 10 लाख 7 8 लाख रुपया लग जाएगा। पर 5,000 दे के आप यहाँ पे कर पाओगे। लेट मी गिव दैट एग्जाम्पल टू यू। घर में चाय बनाने के लिए जाएंगे, कम से कम 20 30 रुपया लग जाएगा। सड़क पे ले लेंगे, 10 रुपया में आ जाएगा। मे बी आई एम गिविंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल। कोलकाता लाइफ स्टाइल इस थोड़ा चीप है, सस्ते में हो जाता है। मुंबई में शायद एक कप चाय 40 50 रुपया लग जाएगा। वट एवर द केस में भी, माई पॉइंट इज दैट जो घर में आप करने के लिए जाओगे, यू नीड होल लॉट ऑफ थिंग्स, पर बाहर में जाने से हो जाएगा, बिकॉज एक साथ बना रहा है, उसका फिक्स कॉस्ट कम हो जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। सो दैट इज एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आप खुद करने के लिए, ये सब काम करने के लिए जाओगे, बिकॉज निफ्टी का जो कंपनीज है, पकड़ लीजिए, ऐसे में बोल रहा हूँ जस्ट फॉर वियर्ड एग्जांपल, कि एमआरएफ प्राइस इज मोर देन लाख। आप एमआरएफ आपका निफ्टी में ऐसे तो है नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद नहीं है। एमआरएफ का पकड़ लीजिए 0.5% एलोकेशन है। आपको तो एक तो एमआरएफ शेयर लेके उसको 0.5% एलोकेशन करना है, तो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द फंड। सो दिस वी से कि म्यूचुअल फंड्स में आप खुद करने के लिए जाओगे, जो आपको मेहनत करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड्स में वो नहीं चाहिए। सो दैट इज अबाउट दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में क्या है, टाइप ऑफ फंड्स, जैसे कि, अच्छा ना, हमको ना थोड़ा सा एक तो फोन आ रहा है, प्लीज बेयर विथ मी, हमको 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। फिर आपसे मैं मुलाकात करता हूँ, और इन द मीन टाइम आपका जो क्वेरी है आप कर सकते हो। गिव मी 2 मिनट्स टाइम। इन द मीन टाइम आप देख लो। एनीबडी सीनियर हु इज देयर? आजमेर जी आप हो सर? एनीबडी हु इज देयर इन द सिस्टम? हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा सा हमको 2 मिनट का ब्रेक दीजिए सर। और इन द मीन टाइम नो वरीज। पार्टिसिपेंट्स कुछ क्वेरी है आप डाल दो, मैं ऑब्वियसली आई विल गेट बैक टू यू। मैं वेरी मच आई एम देयर ओनली हियर ओनली, ठीक है ना? एक बार ओके आप सर। देख लो, स्टडी मटेरियल्स देख लो। हाँ, थैंक यू, मैं आ रहा हूँ, दो ठीक मिनट है का। सर, 5 मिनट के ब्रेक के बाद वापस 5 चालू। मिनट नहीं, 2 3 मिनट में आ जाता हूँ। आप ब्रेक ले लो, आप फेयर भी फेयर ब्रेक ले लो, इनफ। 1 घंटा हुआ है। बट आई वुड बी कंपेंसेटिंग द सेम with some very valid questions and with some quality inputs on the risk ओके management, जो सर। आप एक बार सुनने के बाद याद भी रहेगा। आइडियली दिस थिंग डन शुड सर। नॉट बी डन, बट कुछ एनएफओ रिलेटेड कुछ अभी खत्म हुआ है, कुछ क्वेरी आ रहा है, संभालना पड़ेगा प्लीज। ओके वी आर सर। मीटिंग विद नेक्स्ट 3 to 4 minutes। थैंक यू, थैंक यू। ओके।
Sir, I'm back, and hopefully we can start. Yes, sir. Thank you. So, I need to share my screen. I hope my screen is visible. Okay. So no, you in mutual funds, the type of funds इसके लिए कुछ sir, I'm continuing, right, sir? Yes, sir. Thank you. सो एक देखो, जैसे इंसान करना नहीं चाहिए, इंसान को कभी कभी हम मजहब के नाम पे सेग्रीगेट करते हैं बेस्ड ऑन द जेंडर, ऑल दोस थिंग्स, राइट, बेस्ड ऑन द लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। वन इज मैनेज पैरामीटर्स इन द सेंस एज यू सी ऑन माय स्क्रीन कि एक्टिवली मैनेज्ड एंड पैसिवली मैनेज्ड। व्हाट इज एक्टिवली मैनेज्ड इन द सेंस फंड मैनेजर हैज द फ्रीडम टू चूज द स्टॉक्स एंड द एलोकेशन। अब निफ्टी कंपनी को ये फंड देखो, निफ्टी का तो शेयर होता नहीं है, तो somebody needs to create a basket of nifty. Any fund house would going to can do that. कोई है funds भी है बहुत, तो that is passive because fund manager don't have a call in the sense कौन स्टॉक लेगा, कौन सा कितना एलोकेशन में डालेगा, फंड मैनेजर cannot take that call. एक्टिवली मैनेज में क्या है, वो अपना ये कॉल ले सकता है। वी कॉल दिस मैनेज्ड फंड्स। So actively funds a bit too costly because they want to beat the benchmark. एक technical term आ गया है, I would be explaining you what is benchmark. You cannot compare SBI with XYZ companies. You cannot compare XYZ companies with SBI or for that reason any other reputed fund house, any industry plan. Question of मतलब ऐसे reputation नहीं, reputation का बात नहीं है, तो idea simple है, you cannot compare that. So you can compare the funds जो सेबी बोलता है, आप benchmark से compete करो। Say for example, मैं बाइक लेके चल रहा हूँ, बाजू में भी एक बाइकर है। आई कैनॉट कंपेयर माई स्पीड विद दैट बाइकर, बट बोथ ऑफ अस कैन कंपेयर विद द ट्रैफिक स्पीड, विद द सड़क जहां से वो जा रहा है। तो लार्ज कैप फंड का सड़क का जो बेंचमार्क होता है उसको निफ्टी या सेंसेक्स बोलते हैं। मिड कैप का जो फंड्स है उसका जो बेंचमार्क होता है उसको मिड कैप इंडेक्स बोलते हैं। सो अगर इंडेक्स का रेप्लिकेशन आप कर देते हो, दैट इज अ पैसिव फंड, दैट इज इंडेक्स फंड। वो सस्ते में होता है, फंड मैनेजर नीड नॉट टू स्क्रैच देयर ब्रेन। और वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा चैलेंजेस रहता है, यही स्टॉक इतना अमाउंट में लेना है। पर एक्टिव में क्या है, ऐसे नहीं होता है। फंड मैनेजर दे हैव फ्रीडम, they need to work hard in terms of stock selections, they need to work hard in terms of allocation. So actively managed and passive ये कैटेगोरेशंस है। अंडर मैनेज्ड कैटेगरी, अंडर स्ट्रक्चर में क्या है, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड मतलब यू कैन सब्सक्राइब ऑल थ्रू द ईयर, हर 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 टाइम पे आप उसको खरीद सकते हो। क्लोज्ड एंडेड मतलब आने के बाद आप खरीद नहीं पाओगे, फिर नेक्स्ट सीरीज लेना पड़ेगा, जैसे जैसे इन एफएमपी वगैरह है, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। तो क्लोज्ड एंडेड फंड्स जब तक ओपन है ले लो, एक बार बंद हो जाएगा फिर आप दोबारा उसको ले नहीं पाएंगे, फिर नेक्स्ट सीरीज आएगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरवल फंड इज अ मिक्स ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड। तो उसमें कुछ ओपन एंडेड का फीचर्स रहता है, कुछ क्लोज्ड एंडेड का। मतलब पकड़ लीजिए 15 दिन बाद खोला, 2 दिन ट्रांजेक्शन हुआ, फिर बंद हो गया, फिर खोला, तो इस ऐसे हो सकता है। पर इंटरवल फंड्स का इंडिया में ऐसे कुछ खास एग्जांपल मैंने देखा नहीं होने के लिए हो सकता है। पर ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, देयर मेनी। क्लोज्ड एंडेड प्राइमरली एग्जांपल कम्स फ्रॉम द डेट स्पेस। तो एफएमपी जैसे मैंने बताया, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, और इसका यूनिट कैपिटल जो है, नंबर ऑफ यूनिट्स, वो फिक्स्ड है, बिकॉज इनफ्लो आउटफ्लो तो होता नहीं है। सो ये एक सवाल आ सकता है। इंटरवल फंड्स इज अ मिक्स ऑफ ओपन एंडेड, कुछ दिन खुला रहेगा, कुछ दिन बंद रहेगा। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव विच इज वेरी पॉपुलर, इसमें क्या है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सोल्यूशन एंड अदर थिंग्स आर देयर। सो फंड इज नोन एज इक्विटी फंड जब उसका एलोकेशन 65% के ऊपर इक्विटी एलोकेशन है। 65% के ऊपर जब इक्विटी एलोकेशन है उसको इक्विटी फंड्स बोलते हैं। डेट फंड्स मतलब इक्विटी एंड डेट आई वुड बी शेयरिंग विद यू। मैंने बताया नहीं व्हाट इज इक्विटी एंड डेट। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मार्केट कैप, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमी एंड द मार्केट्स। आई वुड बी शेयरिंग विद यू, आई एम टेकिंग अ नोट। मैं अभी आपको बता दूंगा व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज डेट, डोंट वरी। इसको मैं करूंगा, पर थोड़ा सा देर बाद, पहले ये खत्म कर दो, नहीं तो इतना जंप होने के बाद मुश्किल हो जाएगा। एक इक्विटी, एक डेट। सो हाइब्रिड इज अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट एज आई हैव शेयर्ड विद यू। जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड, आर्बिट्राज, उसमें इक्विटी भी रहता है, डेट भी रहता है। सोल्यूशन ओरिएंटेड इज अ ब्रीड जहां पे व्हेन द पीपल इन्वेस्ट दे नो फॉर श्योर मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। या तो बच्चे का प्लान होता है एजुकेशन के लिए, या तो रिटायरमेंट पर्पस के लिए। तो अकॉर्डिंगली सोल्यूशन ओरिएंटेड इज वेरी, सोल्यूशन ओरिएंटेड में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, आप बोल सकते हो दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन उस एंगल से। अदर स्कीम्स मतलब इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स वो रहता है, जैसे सोल्यूशन इंडेक्स, ईटीएफ्स वगैरह, वो अदर स्कीम्स में रहता है। तो कुल मिला के 37 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर।
एज आई शेयर विद यू। देखो यहाँ पे कुछ कुछ फंड्स के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि जैसे फोकस फंड्स है, फोकस में क्या है, फोकस में आप यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन मोर देन 30 कंपनीज। कंसेंट्रेटेड हाई कन्विक्शन बेट्स लिया जाता है, तो वो चीज है यहाँ पे। मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप, आई शेयर विद यू, मल्टी कैप में 25 25 25 करके दिया हुआ है, सो दैट इज देयर। और लार्जर मिड कैप तो बताया 35 35 करके। हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, ये वाला सेक्शन में आप सब कुछ देख सकते हो कैसे भी, जैसे मिड कैप में मिनिमम 65% रहेगा, यू कैन गो थ्रू देम, ये आपको मिल जाएगा। तो फोकस में देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम 30, राइट। 65% रहेगा टोटल एसेट्स, वो लार्ज मिड कहीं से भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है, एक बार देख लीजिएगा। नाउ हैविंग ये बोलने के बाद हम लोग थोड़ा सा हम्म, अच्छा, ये स्कीम कैटेगराइजेशन डेट में थोड़ा बताना चाहता हूँ, और इसके लिए थोड़ा सा मैं आई वुड बी यूजिंग माई एक्सेल। देखो एक तो पहले एक तो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। दो चीज इंपॉर्टेंट है डेट में। पकड़ लीजिए सीसॉ है, यहाँ पे प्रेशर दोगे यहाँ पे जाएगा, राइट, और यहाँ पे बच्चा बैठा है, ये प्रेशर देगा तो यहाँ पे ये जाएगा। सो एज यू नो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आएगा, बॉन्ड का प्राइस ऊपर भागता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज इन्वेस्टेड रिलेटेड इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट। अगर आज मैं नहीं बताऊंगा, आई थिंक इट इज वेरी कॉमन, अगर समझ में नहीं आता तो कल एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस आर इन्वेस्टेड प्रोपोर्शनल, एज इन आपका अगर इंटरेस्ट रेट भागता है तो बॉन्ड का प्राइस गिरता है, ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, सो दिस इज वन ऑफ वेरी क्रिटिकल थिंग, बिकॉज आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी स्टार्ट मूविंग अप, सो नथिंग लाइक इट, तो ये निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा। हाँ, हाँ, अगर आप डेट में इन्वेस्ट करते हो और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, मैं इंटरेस्ट रेट लिख देता हूँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, सो वहां पे आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बढ़ेगा नहीं, घटेगा। बिकॉज दैट इज बॉन्ड का जो उस पोर्टफोलियो का स्टॉक्स है, उस स्टॉक्स का जो प्राइस, पोर्टफोलियो का जो सिक्योरिटीज है, वो इवन डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेबल इन द मार्केट, राइट, तो उनका प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा, राइट, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए बोला जाता है। नाउ एक चीज और है, तो दिस इक्वेशन नंबर वन कि इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड इक्वेशन थोड़ा बता देते हैं, सेकंड इक्वेशन है कि कोई सेम चीज है। अच्छा, ये क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे दूसरा चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पकड़ लीजिए इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे प्रेशर है हमने, और यहाँ पे एक तो फंड है, 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 ऐसे ही समझिए, दिस इज अ मेंटल मॉडल व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेशर दूंगा, सबसे उछलेगा जो पीछे में बैठा है वो। अभी जो जहाँ पे बैठा हुआ है, जो जहाँ पे बैठा हुआ है, उसको हम मैच्योरिटी मांगते हैं, बोलते हैं। सो मैच्योरिटी कोई पेपर का अगर एन है, जो लास्ट में बैठा है पकड़ लीजिए, उसको हम बोलते हैं एम एन, मैच्योरिटी अगर एम एन है, और जो फास्ट में बैठा है उसको अगर एम वन बोलता हूँ, और अगर एम एन ज्यादा है एम वन से, तो कहने का मतलब है इंटरेस्ट रेट नीचे आने से एम एन ज्यादा उछलेगा, उसका अप्रिसिएशन ज्यादा होगा। एक लॉजिक बोलने से समझ में आ जाएगा, पकड़ लीजिए इंटरेस्ट रेट 1% गिरा है, पर एक बॉन्ड का मैच्योरिटी 10 साल है, एक बॉन्ड का मैच्योरिटी 1 महीना है। तो जो गिर गया है ना अभी इंटरेस्ट रेट, जो 1 महीना है वो उसको 1 महीना तक तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, पर 1 महीने के बाद दे आर बैक टू द स्ट्रिक्ट। पर जो 10 साल वाला पेपर है वो 1 महीने के बाद तो नहीं, कम से कम 10 साल के बाद उसका चेंज आएगा, उसके पहले चेंज नहीं आएगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी हो गया है इशूअर से, आपको इतना ब्याज मिलेगा। अभी इंटरेस्ट रेट 1% गिर गया है, वो वहां से निकलेगा, फिर वो आएगा कि नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट उसको क्या मिलेगा। तो जब तक 10 साल जब तक है चल रहा है, 10 साल जब तक चल रहा है, उसको वही ब्याज से उसको पैसा मिलेगा। सो आप ऐसे डायग्राम में याद रखो, कोई मतलब एक पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक सुमो रेसलर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिया एज अ सुमो रेसलर। तो सुमो रेसलर जैसे ही बैठेगा, तो ये सबसे द गाय विद द हाईएस्ट मैच्योरिटी,
would be the most beneficiary when the interest rate comes down. और अगर जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चलता है, the guy with the highest maturity would going to feel the pinch as well. तो हायर द मैच्योरिटी ऑफ द पेपर, जितना पेपर का मैच्योरिटी बढ़ेगा पोर्टफोलियो में, हायर वुड बी द वोलेटिलिटी। यहाँ पे थोड़ा बहुत हिलाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा उछक उछक हो जाए, ऐसे करके आप याद रखो। आई बिलीव इट इज क्लियर। मैं चैट विंडो में थोड़ा सा डालिए ओके, यस नो थोड़ा डालिए, व्हाट आई हैव शेयर विद यू। तो दो चीज बताओ, इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हायर द मैच्योरिटी हायर टू द वोलेटिलिटी। ठीक है ना, एक बार ये दो चीजें को बता दीजिए, तो देख लेता हूँ। सो यू आर सेइंग ओके, मुझे बहुत सारा ओके है, कौन सा ओके मेरा ये क्वेश्चन के लिए है? 514, अच्छा हाँ मिल गया। नहीं समझ में आया सर, ओके। अच्छा श्वेता मैम पहले ये बताइए, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रहेगा? ये अगर समझाना होगा ना, मैं कल सुबह को इसको समझाऊंगा कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस क्यों इन्वेस्टली प्रोपोर्शनल है। दैट आई हैव नॉट एक्सप्लेन, आई हैव जस्ट शेयर विथ यू कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस इन्वेस्टली प्रोपोर्शनल है, वो नहीं समझाया। मैं ये डायग्राम जो सेकंड डायग्राम है, जहाँ पे एक सीसॉ में बंदे लोगों को बिठाया हूँ, इन द सेंस बच्चे लोगों को एक साइड में बिठाया हूँ और एक्सट्रीम एंड में एक बड़े आदमी को बिठाया हूँ, तो वो जब हिलाएगा तो ऑब्वियसली द गाय हु इज सिटिंग एट द एंड वुड बी मूविंग फार्दर। तो ये याद रखने के लिए है, देयर इज अ मेंटल मॉडल जिसको आप याद रख सकते हो। जस्ट अ सेक, हाँ ये मेंटल मॉडल में ये आपको इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हायर द मैच्योरिटी हायर विद द वोलेटिलिटी। तो हायर द मैच्योरिटी हायर would be the volatility with change in interest rate। मैं लास्ट में जो एग्जांपल दिया था, पकड़ लीजिए, रेसिडुअल मैच्योरिटी, एक पेपर का जो मैच्योरिटी बचा हुआ है, एक पेपर का 1 महीने का है, एक पेपर का 10 साल का है, 10 ईयर्स का। अचानक इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, जो कमिटमेंट है 1 महीने का 10 साल का दोनों को मिल जाएगा, पर 1 महीने के बाद दिस इंडिविजुअल वुड गोइंग टू फेस द हिट, बिकॉज उसको अभी X% नहीं मिलेगा, X-1% मिलेगा। पर जो 10 साल तक है उसको तो मिलेगा, X% नहीं मिलेगा। 10 साल के बाद मे बी X-1 और जो भी रेट चल रहा है तब उसके लिए। तो ये कहने का मतलब क्या है, देखो अगर 1 महीना कहाँ पे बैठेगा, आपको मैं दिखा दूँ तो कि दिक्कत ना हो। 1 महीने का बंदा तो यहीं पे बैठेगा, नजदीक में बैठेगा, 10 साल वाला पीछे बैठेगा। तो इंटरेस्ट रेट जब घट गया है, फायदा किसका हुआ है? जो पीछे में बैठा है। पीछे में कौन बैठा है? हायर द मैच्योरिटी 10 साल वाला। तो वो थोड़ा एक बार याद रखो, इसके लिए मैं ठीक है। अभी समझ में आया? ओके थैंक यू। सो आई थिंक एवरीबडी शुड इंटरेक्ट लाइक दिस, इट वुड बी हेल्पफुल। कोलकाता में आप लोग जो हो एंजल ब्रोकिंग में, मैं कोलकाता में बैठता हूँ, जीवन मैदान मेट्रो में, आप शेयर में कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आप आके मिल सकते हो, परिपर फोन करके आएंगे, बिकॉज आई कीप ऑन ट्रैवलिंग अलॉट। बट अदरवाइज यू कैन कॉल मी, जो दिक्कत होगा। बट कल का सेशन अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर लोगे तो इट बी फायदा, इट विल बी गुड। सो दिस टू थिंग्स आर बिट टू क्रिटिकल, इसलिए मैं सोचा आपको एक बता दूं कि आ, ये बॉन्ड का जो चीज बताऊं, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। I'm not going sequentially, but I'm trying to cover the topics जो काफी important है एग्जाम्स के लिए। चलिए एक तो चीज बता देता हूँ, मॉडिफाइड ड्यूरेशन और मैकॉले ड्यूरेशन। ना व्हाट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन? मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलता है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी से ही कितना चेंज करेगा ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज रेट। 1% इंटरेस्ट रेट चेंज करने से नैव में कितना असर रहेगा, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बोलता है। दैट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन। कोई समझ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द नैव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड, दैट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सो इफ यू आस्क मी सर, एक बार समझा दीजिए, दिखा दीजिए, तो मैं बोलूंगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। यहाँ से देखो, देखता हूँ अब मिलता है कि नहीं मिलता है इसमें। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है यहाँ पे। सो दिस इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन, आप एक बार देख सकते हैं, मेजर्स द प्राइस सेंसिटिविटी, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर यूनिट चेंज इन इट। तो कितना नैब में असर आएगा, हायर द मॉडिफाइड ड्यूरेशन हायर वुड बी द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी। कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक मॉडिफाइड ड्यूरेशन को पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी हिसाब से समझ सकते हो, बट इट इज नॉट एक्जैक्टली द राइट डेफिनेशन। तो हायर द चेंज इन इंटरेस्ट रेट, जो डेट फंड्स में हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो ज्यादा उछलेगा।
Right. So in a debt portfolio, that is about modified duration. One more thing I would like to share with you is Macaulay duration. ये शायद एग्जाम में उतना देगा नहीं, पर कभी कभी सवाल आ जाता है, समझ नहीं आएगा व्हाट इज मैकॉले ड्यूरेशन। मैं समझा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ, अच्छा, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, मेरा वॉइस क्लियर है? सब सबको मतलब सुनाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, भास्कर रे सर, मोबाइल नंबर सर के पास है, मैं एक बार जाते वक्त फिर भी दे दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं एक बार दिखा, मैं ऑलरेडी आई हैव शेयर विथ यू, मे बी हैव ज्वाइंट लेट, तो दिखा दूंगा, नॉट टू वरी। कहाँ पे? अच्छा, ये कहाँ पे है? लिखा तो था पीछे में, हाँ। सो दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है? देखो, I have no reservations of taking anybody's and everybody's call. The only thing, if I couldn't take call, say for example, एक तो उठाने के बाद you people have faced the problem, 2 मिनट 3 मिनट ऐसे ही चला गया था, पर मैं अगर नहीं उठा पाता हूँ, प्लीज लीव अ मैसेज, आई एम फ्रॉम निर्मल मंग सो एंड सो दैट आई कैन टेक योर कॉल, नॉट एन इशू। नाउ हैविंग सेड दिस, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे था मैकॉले ड्यूरेशन। सो मैकॉले ड्यूरेशन ये बोलता है, पकड़ लीजिए मैं किसी को लाख रुपया उधार दिया हूँ, तो लाख रुपया उधार दिया हूँ, फ्री में तो नहीं दिया हूँ, मैं ऐसे ही पकड़ लेता हूँ 10% ब्याज में। 10% ऑफ 1 लाख कितना होगा? लगभग 1,000 रुपया होगा, अप्रोक्सीमेटली 1,000 ही तो होगा। 10% 10,000 होगा, राइट? सॉरी, 10% 1 लाख का 10,000 होगा, 10,000। और हर महीने के हिसाब में कितना मिलेगा? हर महीने आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? हर महीने अप्रोक्सीमेटली 833 रुपीज देना पड़ेगा। इट इज नॉट अ वेरी राइट कैलकुलेशन, कुछ प्लस माइनस है, पर 833 रुपया देना पड़ेगा। अभी ऐसे करके मैं जो 10,000 दे रहा हूँ, देते देते मेरा एक दिन तो 10 लाख रुपया खत्म हो जाए। 10 लाख, 1 लाख रुपया का 10% है, 1 लाख रुपया मैं वापस कर दूंगा प्रिंसिपल। जो टाइम में यूजिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स, मैं ये 1 लाख रुपया उसको दे रहा हूँ, खत्म हो रहा है 1 लाख, खत्म मतलब ब्याज चलता रहेगा, पर 1 लाख उठ के आ जाएगा, जो उधार दिया था हमको, उसका 1 लाख रुपया अपना घर में आ जाएगा। वो टाइम पीरियड को हम बोलते हैं मैकॉले ड्यूरेशन। थोड़ा इंग्लिश में बता देते हैं, इट इज अ टाइम पीरियड बाय विच यू गेट योर प्रिंसिपल मनी बैक थ्रू मोडालिटीज लाइक इंटरेस्ट पेमेंट और इंटरिम जो कैश फ्लो आ रहा है। तो कभी कभी जीरो डेट, जीरो कूपन बॉन्ड होता है, जहां पे कुछ भी ब्याज बीच में नहीं मिलता है, लास्ट में जाके आपको बुलेट पेमेंट मिल जाता है, पूरा पेमेंट। वहां पे मैकॉले ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू द मैच्योरिटी। पर जहां पे बीच बीच में आपको पैसा मिल रहा है थ्रू इंटरेस्ट पेमेंट, वो इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐड करके जब 1 लाख हो जाता है, वो पीरियड को हम बोलते हैं मैकॉले ड्यूरेशन। द अमाउंट, द टाइम बाय विच यू गेट योर प्रिंसिपल मनी बैक, उसको हम बोलते हैं मैकॉले ड्यूरेशन। राइट, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये यहाँ से सवाल आ सकते हैं। जस्ट द डेफिनेशन, मैकॉले ड्यूरेशन देखो यहाँ पे जो भी सेबी का है, मैं आऊंगा इसमें, बहुत सारी जगह मैकॉले ड्यूरेशन बोला गया है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, नॉट एन इशू। मैं देखता हूँ एक बार यहाँ पे, एक बार एक्सप्लेन किया गया है कि नहीं किया गया मैकॉले ड्यूरेशन। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। सो दैट्स वो छोड़ दीजिए। मैं द टाइम बाय विच गेट योर प्रिंसिपल मनी बैक, कुछ एप्स है परप्लेक्सिटी वगैरह, वहां पे भी देख सकते हो। अगर दिक्कत होता है तो बता दीजिएगा, ऐसे तो यूट्यूब में वीडियो वगैरह मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मैकॉले ड्यूरेशन। जब तक आप अपना प्रिंसिपल आपको वापस मिल जाएगा ब्याज के जरिए, उसको हम बोलते हैं मैकॉले ड्यूरेशन। चलिए, थैंक यू। अच्छा, एक तो आई हैव प्रॉमिस्ड यू, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जो आएगा। देखो, रिस्कोमीटर से सवाल आएगा, ठीक है ना? तो ये ग्रेड्स आर इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस डायग्राम इज इनकम्प्लीट। एक तो डिस्को, जैसे कार में स्पीडोमीटर रहता है, तो ये अगर मॉडरेट है, मतलब योर प्रिंसिपल वुड बी एट मॉडरेट रिस्क, जैसे आपको दिख रहा है। तो हाउ मेनी ग्रेड्स आर देयर? एक दो तीन, छह तो है। किसके लिए है? क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के लिए सेबी ने उसमें रिस्क है ये समझाने के लिए रिस्कोमीटर बनाया। इट हेल्प्स टू गॉज द रिस्क दैट इज देयर इन द ग्रॉस लेवल पे, कितना रिस्क है फंड में, बिकॉज प्रिंसिपल वुड बी एट रिस्क। अगर इक्विटी फंड्स देखेंगे सारे के सारे ऐसे ही ग्रेडेशन में है। अच्छा सर, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल देगा। क्या है ये? जैसे ओवरनाइट में रिस्क कम है, लिक्विड में ज्यादा रिस्क है। देखो, इंडिया गवर्नमेंट को आप एक दिन के लिए उधार दे रहे हो, और इंडिया गवर्नमेंट को आप 30 दिन के लिए उधार दे रहे हो।
30 साल के लिए, 30 साल के लिए जो उधार दोगे काफी वोलेटिलिटी रहेगा, वो काफी बड़ा है, उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। पर एक दिन के लिए उधार दोगे तो कम। तो ओवरनाइट लिक्विड में आऊंगा, ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट्स होता है फॉर अ डे, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होता है फॉर 90 डे पीरियड। यू कैन स्टे इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर 6 ईयर, डोंकी नंबर ऑफ ईयर्स, पर फंड चार्न आउट हो जाता है लगभग 90 दिन के अंदर में, राइट। अल्ट्रा शॉर्ट जो है वो 3 से 6 महीना। आप सोचोगे ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सब किताब में दिया हुआ है, मैं आऊंगा। तो ये ड्यूरेशन वाला चीज अब याद रखिए। एक तो जितना मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज होने से इसको प्रॉब्लम नहीं है। वो जो मैं इसका एग्जांपल दिया ना, तो ओवरनाइट फंड पकड़ लो, बहुत नजदीक में बैठता है, उसका मैच्योरिटी कम है, तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने से इसको उतना असर खास पड़ता नहीं है, ऐसे समझ लो। पर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड तो पीछे बैठता है, तो इंटरेस्ट रेट जब चेंज होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत भी, यहाँ पे बहुत असर आएगा। तो दैट वे ये आता है। तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क मतलब उधार, मतलब मैं किसी को उधार दिया हूँ, तो वो टाइमली पैसा देगा कि नहीं देगा। उस एंगल से गिल्ट फंड तो काफी सेफ है, उस एंगल से गिल्ट फंड काफी सेफ है। हाँ, पर जैसे आप क्रेडिट रिस्क फंड में जाओ, क्रेडिट रिस्क फंड तो हो गया स्मॉल कैप के, काफी काफी रिस्क है, तो वो पूछेगा किसमें रिस्क कम है किसमें रिस्क ज्यादा है, और एक ग्रेडेशन भी हो सके दे देगा आपको। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो इसमें सबसे कम रिस्क है। फिर उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप, फिर मल्टी कैप, फिर मिड कैप, ऐसे करके है, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ रिस्क ग्रेडियंट, सबको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा रिस्क सेक्टरल फंड्स में है, बिकॉज उसमें एक ही चुना हुए सेक्टर है। फिर थीमेटिक फंड्स इन द सेंस मल्टीपल सेक्टर्स को इन्वॉल्व करके, थीमेटिक फंड थोड़ा रिस्क कम है सेक्टर फंड से। फिर फोकस फंड्स, फिर डाइवर्सिफाइड फंड्स है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेबी चाहता है whosoever guys are meeting up with the clients। देखो ये क्लाइंट जब तक जिंदा है इंडस्ट्री चलेगा, राइट। तो क्लाइंट को अच्छा क्वालिटी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पैसा डूब जाएगा तो क्लाइंट का जाएगा। सो टाइम एंड अगेन ये बोला जाता है, क्लाइंट को क्वालिटी इंफॉर्मेशन दो, मैन पावर क्वालिटी हो जाए, वो ढंग से बता पाए। सो दिस थिंग्स आर देयर। तो मैं सोचा इसको आपको शेयर कर दूं। और अच्छा, अजमेर सर, आप ना एक बार सर अपना, आप अपना, इफ यू डोंट माइंड, मेरा तो फोन नंबर दे दिया हूं, आप अपना ईमेल आईडी थोड़ा सा टेक्स्ट कर दो। मैं ये दो मटेरियल ऐसे तो मेल कर दूँ, आपको भी मेल कर दूंगा, ताकि आप कैंडिडेट से शेयर कर पाओ। ठीक है ना सर? ओके सर, मैं मेरा ईमेल आईडी भेज देता हूँ सर। हाँ, एसएमएस कर दीजिए, मैं ले लूंगा। या अच्छा, जरूर याद रखिएगा, ईटीएफ में डीमैट कंपलसरी है, म्यूचुअल फंड में नहीं लगता, पर ईटीएफ डीमैट के बिना होगा नहीं। कोई भी क्लोज्ड एंडेड फंड है, सेबी बोलता है एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना पड़ेगा। प्लीज हियर मी आउट, वेल ऑन दोस थिंग्स। सवाल आता है यहाँ पे। क्लोज्ड एंडेड फंड्स में तो फंड मैनेजर के पास आओगे, बोलने मैं लॉक इन है, मैं दे नहीं पाऊंगा। पर वो लिस्टिंग कर देगा तो कोई बेचने के लिए आएगा, तो हो सकता है मार्केट में ना काम हो सकता है, लिक्विडिटी मिल सकता है। तो सेबी का ये मैंडेट है, क्लोज्ड एंडेड फंड्स नीड्स टू बी कंपल्सरी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो आप उसको ट्रेड करके निकालोगे तो आपको डीमैट करना पड़ेगा। ओके गुड, सीएजीआर हुआ, इसका हो गया। मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके, लेट मी क्विकली कम टू द रिस्क, रिस्क रिवार्ड में थोड़ा आएंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर उसमें आऊंगा। तो सबसे पहले रिस्क मतलब क्या है? रिस्क मतलब डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस जो मेरा है वहां से डिविएट कर रहा है। हम कभी कभी, देखो ये काफी सब्जेक्टिव है। रिश्ता वगैरह में हम देखते हैं रिस्क है, मतलब ये रिलेशनशिप में रिस्क इसलिए है बिकॉज बंदा इज अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी कर लेगा, राइट। तो एक्सपेक्टेशन से डिविएट है, मैं एग्जांपल देने से समझ में आ जाएगा। तो अभी एक्सपेक्टेशन कैसे बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन कैसे बनेगा, पकड़ लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपको याद रखने के लिए सुविधा होगा, तो साथ में बने रहिए। ये जो शख्स है ये विराट कोहली है, ठीक है, दिस विराट कोहली। विराट कोहली का आपका दो तरीके से एक्सपेक्टेशन होता है। बैट करने के लिए उतरा है तो उस दिन मैच में जितना भी स्कोर होगा, विराट कोहली को उससे ज्यादा स्कोर बनाना पड़ेगा, राइट। दैट इज वन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन। और एक तो सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या है, भैया उसका जो भी पास्ट परफॉर्मेंस रहा है उससे ज्यादा वो स्कोर बनाए। सो दैट इज अबाउट टू एक्सपेक्टेशंस। और इंडस्ट्री में दो किस्म का रिस्क है। ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो हो रहा है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। नोटेशन ऐसे होता है, हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन।
ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसके बाद मैं थोड़ा इसका सम्स वगैरह दिखाऊंगा, बिकॉज ये आप जरूर आज रात को देख लीजिएगा, कल सुबह में फिर इसको अगर जरूरत पड़ेगा मैं कुछ डाउट्स रहेगा तो बता दूंगा। पर इसका रिलेटेड डाउट्स नहीं करूंगा मैं आज, जो खत्म करना है ये मैं अभी आई विल बी कवरिंग टुडे इटसेल्फ, आफ्टर दैट जो भी लेफ्ट ओवर रहेगा कल सुबह करूंगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखो, बचपन में मम्मी डैडी हम लोग को डांटता था, कभी कभी बोलता अरे तू तो पहले साल में सही था, तू तो ऐसे नहीं था, ऐसे क्यों बदल गया है, बिकॉज जो पास्ट बिहेवियर है उससे कुछ डिविएशन हो गया है, राइट। तो इसलिए वो नाराज हो गया, और दूसरा क्या है, श्याम बाबू का लड़का तो ऐसे नहीं करता है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तो ही इज कंपेयरिंग यू विद द पियर्स, उसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक है ना, मैं लिख दूं स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा तीन किस्म का थर्ड रिस्क होता नहीं है, याद रखो। आपको पूछा जाएगा शार्प रेशियो क्या है, बीटा अल्फा फाल्फा क्या है, दे डोंट मेजर रिस्क, क्या है पता नहीं है, वो बाद में मैं बताऊंगा। बट रिस्क इज मेजर्ड ओनली ऑन टू fronts. स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर डेट फंड्स, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर डेट फंड्स। ठीक है, बीटा विद रेट, तो बीटा ऑफ द बेंचमार्क, बेंचमार्क का जो बीटा है ना, इसका यह सवाल है, बेंचमार्क बीटा इज ऑलवेज वन, बिकॉज बेंचमार्क का बेंचमार्क का बेंच बेंचमार्क से ही आप सबको कंपेयर करें। पकड़ लीजिए क्लास में एक बहुत लंबा बंदा है, उसका नाम है पकड़ लीजिए आशीष, अभी आशीष का हाइट क्या है 1, आशीष का रेफरेंस में से समीर का हाइट क्या होगा, समीर का हाइट हो सकता है 1.1, सॉरी 1.1 1.2 वट एवर द केस में, बस स्टैंडर्ड लिया हूँ, आशीष सबसे लंबा नहीं, आशीष को मैं स्टैंडर्ड लिया हूँ, वो एक बंदे का हाइट हो सकता है 0.9। सो वैसे ही बेंचमार्क का बीटा हम 1 पकड़ते हैं, उससे पकड़ते हैं फंड कितना वोलेटाइल है, अगर 1.2 है इट इज 20% मोर वोलेटाइल, 1.3 है 30% मोर वोलेटाइल, इफ इट इज 0.8 20% लेस वोलेटाइल, इट इज 0.7 30% लेस वोलेटाइल, ऐसे करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट बेंचमार्क बीटा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सुविधा हो जाए, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का बोल रहा हूँ। पकड़ लीजिए एक फंड का रिटर्न है 12, ये कंसिस्टेंटली 12 करके रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। अभी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आप करने के लिए जाओगे ना, एक्सेल से पूछोगे स्टैंडर्ड डिविएशन बोल दो, तो देखो स्टैंडर्ड डिविएशन भी जीरो, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो है, बिकॉज इट इज डिविएट कर ही नहीं रहा है, पर जैसे ही 12 की जगह में -9 लिखो स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ जाएगा, 10 लिखो स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ जाएगा, 22 लिखो स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ जाएगा, तो वोलेटिलिटी हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बोलता है, जो भी फंड का एवरेज परफॉर्मेंस है आपका नेक्स्ट ईयर में, आपका वोलेटिलिटी प्लस माइनस होगा। तो पकड़ लीजिए ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है, एज वी कैन अंडरस्टैंड, ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है। सो हाउ टू इंटरप्रेट इट, आपको कैलकुलेट करना नहीं करना है, बोलिए बोलेगा, नोबडी विल आस्क यू टू कैलकुलेट, बट टू इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। एवरेज फंड का रिटर्न क्या है, एवरेज फंड का रिटर्न है ये वाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर में फंड का रिटर्न कितना होगा, 11 प्लस दिस 11 माइनस दिस इज द रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन गिव्स यू रेंज, अभी ये सब 12 कर दो तो ये 12% ही आएगा, 12+0 12-0, सो दैट इज हाउ स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंप्लीमेंटेड। तो जो एवरेज रिटर्न है, जो एवरेज रिटर्न है स्टैंडर्ड डिविएशन उसका ऊपर जा सकता है और इसका नीचे आ सकता है, तो न्यू रेंज, आपका जो रेंज ऑफ रिटर्न रहेगा इट वुड एसेंशियली गोइंग टू बी स्टे विद इन दिस बैंड्स, इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन को बोलते हैं। आप एवरेज से एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए, तो ये आपको रेंज मिल जाएगा, द रेंज ऑफ द रिटर्न, सो दैट यू कैन प्रेडिक्ट फंड का रिटर्न कितना हो सकता है। हाँ, अच्छा थोड़ा ये सुनो, बताएंगे क्या समझ में हुआ। अच्छा क्या हुआ, ये क्या हुआ, सुशांत दास टू हो, सुशांत हो। अच्छा आप लोगों का मेल आईडी नहीं, मैं उनसे में तो क्लोज कैसे हुआ सर, वी कैन ऑल्सो बाय इन टाइम। श्वेता मैडम आपका कुछ क्वेरी था, ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, क्लोज कैसे हुआ, कुछ दूसरा क्वेरी के लिए। ओ क्लोज कैसे हुआ, क्लोज एंडेड फंड्स कैसे हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया। तो इसका मतलब क्लोज एंडेड, अच्छा दैट फॉर क्लोज, यस 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 यस, तो क्लोज एंडेड फंड एक्सचेंज में, अच्छा देखो, अच्छा अच्छा सॉरी, अच्छा मैं एक बार इसको बोल के मैडम को आंसर करके आपके पास आ रहा हूँ। तो क्लोज एंडेड फंड्स मतलब ये हो गया कि आप एक बार खरीद लिया फिर दोबारा उसमें घुस नहीं पाएंगे, मैन्युफैक्चरर की तरफ से आप कुछ कर नहीं पाओगे। अभी एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है, आप खरीदारी बेचादारी कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपका जानकारी के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो वाई डू से कि गिल्ट फंड में
इज सब्जेक्ट टू क्रेडिट रिस्क। अरे गिल्ड फंड में क्रेडिट रिस्क इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। गिल्ड फंड तो क्रेडिट रिस्क है ही नहीं, सरकार के पास जाओगे सरकार पूरा पैसा वापस कर देगा। पर मार्केट में तो ट्रेड हो रहा है ना, ऊपर नीचे भाव होगा। आपका बैंक का एफडी जब मार्केट में ट्रेड होना शुरू करेगा तो वो भी थोड़ा उछलेगा। आपका घर का मकान का प्राइस का तो नैव निकलता नहीं है हर रोज, वो भी मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा, प्राइस ऊपर नीचे करेगा। सो मार्केट रिस्क मतलब वो ट्रेड ट्रेड हो रहा है वहां से, उसका चक्कर में प्लस माइनस, सो दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट अदरवाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड, एक तो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया क्लोज एंडेड फंड्स, वो जब क्लोज हो गया वहां पे और कुछ पैसा घुसा नहीं पाएंगे, तो यूनिट कैपिटल इज फिक्स्ड ओवर देयर, सो दैट इज द आइडिया। अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन को बोलिए, तो मैडम को समझ में आया? श्वेता मैम थोड़ा ये नो कुछ बता देंगे इसमें, तो मैं थोड़ा। अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन का एवरेज कैसे मिलेगा? स्टैंडर्ड डिविएशन का एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन, अच्छा थैंक यू। स्टैंडर्ड डिविएशन बता देता हूँ। मैडम देखो स्टैंडर्ड डिविएशन ना आपको बोलेगा ये फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, आपको ऐसे बताएगा। तो आपका पास्ट 3 इयर्स का जो रिटर्न है, एवरेज रिटर्न जो आप बोल रहे हो पास्ट 3 इयर्स का, जनरली पास्ट 3 साल या 5 साल का, जो आप जो स्टैंडर्ड डिविएशन देगा वो बता देगा कि जनरली बोलना चाहिए कि 3 साल का है कि 5 साल का है, जो भी है। तो जनरली हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वेरी जनरल थिंग, भैया 3 साल का एवरेज रिटर्न देख लो कितना कैगर चल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन देख लो, उसका प्लस माइनस में रहेगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। पर एग्जाम में आपको उस किस्म का सवाल नहीं देगा, मुश्किल से बोलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन किस किस्म का रिस्क मेजर करता है। तो देखो टोटल रिस्क है, एक तो नया टॉपिक नहीं जा रहा हूँ, इसी का रिलेटेड टॉपिक में, टोटल रिस्क जो है, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। व्हाट इज सिस्टमेटिक रिस्क एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क? मतलब ऐसा बारिश जहाँ पे सब भीग जाता है। तो एनी मैक्रो रिलेटेड रिस्क, कोविड वगैरह सब कुछ, वो आपका उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। और जो कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो रिस्क है, कंपनी स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर रिस्क है, उसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। तो मतलब क्या है, देखो सिस्टमेटिक रिस्क को ना आप अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज अवॉइडेबल। याद रखिए कोविड के टाइम में आप डाइवर्सिफाई करके क्या करोगे, सब गिर रहा है। पर कंपनी स्पेसिफिक, स्टील में कुछ प्रॉब्लम है, स्टील इंडस्ट्री में या बैंकिंग में, दैट बिकम्स अवॉइडेबल। तो आप इसको डाइवर्सिफाई करके कम कर सकते हो रिस्क को, दैट इज अवॉइडेबल रिस्क, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रिस्क एंड नॉन टोटल रिस्क जो है ना, उसको हम मेजर करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन, कमिंग टू द। और ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क जो है उसको हम मेजर करते हैं बीटा से, राइट। तो सिस्टमेटिक रिस्क वी मेजर थ्रू बीटा, it is unavoidable as I have shared with you, it is known as unavoidable risk, systematic risk। और ये जो टोटल रिस्क है इसको हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यही है जहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेट फंड्स, याद रखिए। तो उतना समझ तो नहीं देगा, पर इतना आपको चाहिए, एवरेज रिटर्न से प्लस माइनस करोगे तो रेंज ऑफ रिटर्न्स मिल जाएगा, और प्लस माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन जो फिगर रहेगा उसके ऊपर। स्टैंडर्ड डिविएशन का एक चीज और भी बोला जाता है, मैं बता देता हूँ कि हायर द लोअर द स्टैंडर्ड डिविएशन, लोअर द स्टैंडर्ड डिविएशन बेटर इट इज, रिस्क है ना, बेटर इट इज। लोअर द बीटा बेटर इट इज। तो रिस्क जितना कम रहेगा, रिस्क इज रिस्क हैज नेगेटिव डिमांड। पेन हो रहा है, आप कभी ऐसे सोचे हो? अरे मैंने डॉक्टर के पास गया है, जनरली पैसा देने से तो मिलता है, डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर गॉलस्टोन भी निकाल लिया, पैसा भी निकाल लिया। तो आप बोलोगे ये क्या बात हुआ, पैसा दोगे मोबाइल मिलेगा, पैसा दोगे पेन मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, फिर पैसा दे रहा है गॉलस्टोन निकाल क्यों लेंगे? बिकॉज गॉलस्टोन एज ए नेगेटिव डिमांड, वो रखना नहीं चाहता। तो इसलिए वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। लोअर द स्टैंडर्ड डिविएशन बेटर इज, स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा दिस इज रिस्क, रिस्क एज अ नेगेटिव डिमांड, वो कम होने से अच्छा है। एक तो पॉजिटिव चीज क्या है, अल्फा, हम आएंगे उसमें, ठीक है ना, हम अल्फा में आएंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेट फंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने। देखते हैं और क्या क्या क्वेरी है आप लोगों का, चलो क्वेरी देखते हैं, क्वेरी बता। ओके आपको क्वेरी है, और किसी का कुछ क्वेरी है अभी तक स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में, बीटा के बारे में, या अभी तक यहाँ तक? बीटा याद रखो, अगर बीटा इज 0.9 मतलब 10% लेस वोलेटाइल, ठीक है। तो 1.2 मतलब क्या है, बाजार 1 टका, बाजार मतलब मार्केट इंडेक्स बेंचमार्क 1 टका जाएगा, तो हम ये सब सिमिलर वर्ड्स है, बाजार बेंचमार्क मार्केट। 1 टका बढ़ेगा, फंड 1 टका 20 पैसा बढ़ेगा। उठने के टाइम में तो बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन द फंड कम्स डाउन, तो मार्केट भी 1 टका 20 पैसे, बाजार भी ज्यादा गिरेगा, 1 टका 20 पैसे ज्यादा गिरेगा। तो हाई बीटा फंड जनरली एसबीआई में तो हम लोग का सब लो बीटा फंड्स है,
But here we are discussing NISM 5A. We will not get into the fact कौन high beta है कौन low beta है. But beta measures risk with respect to the benchmark. How volatile is the fund with the benchmark? That is beta. We'll be now coming to alpha. कुछ क्वेरी है क्या, किसी का समझ में आया सबको? ओके ओके कुछ बताओगे सर? कुछ बोलेंगे ओके देके? सर मैसेज कर दीजिए ओके बोल के, अगर कुछ दिक्कत है तो बोलिए, आई विल बी शेयरिंग द सेम विद यू। और सारे के सारे चीज लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। आई थॉट पीपीटी इस्तेमाल करने से क्या होता है, मजा नहीं आता है, तो कम से कम आई शुड गिव माय एफर्ट। कौन सा मैडम? सरिता मैडम आपने बताया है, प्लीज रिपीट दिस। कौन सा बताऊं, बताइए। अल्फा आई हैव नॉट कवर्ड, आई हैव कवर्ड यू स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। तो स्पेसिफिकली कौन जगह में दिक्कत है बताइए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बीटा का बोल देता हूँ, मे बी आई वाज फास्ट ऑन बीटा। तो ओके ओके, थैंक यू मैम, गॉट इट। सो बीटा, ओके, श्योर, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर डाउट्स। सो मैडम ऐसे है कि पकड़ लीजिए। अच्छा मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं, पकड़ लीजिए आपका 200 करोड़ का पोर्टफोलियो है। अभी 200 का पोर्टफोलियो है, एक एस्ट्रोलॉजर बाबा आया, बहुत दिग्गज बाबा है, आके बोला बाजार गिरने वाला है। ऐसे मजाक से नहीं बोला, कोई आया है, आप मानते हो, बस हो सके वो जो भी बोलता है बाजार गिर जाता है। अभी उसका बोलने में 200 करोड़ पोर्टफोलियो बेच नहीं पाओगे, बहुत सारा कैपिटल गेन, कैपिटल बहुत सारा टेंशन आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भैया उसको पोर्टफोलियो का बीटा बताओ। बोलता है बीटा ना सर 1.2 है। अच्छा, तो मतलब निफ्टी अगर कुछ भी करेगा इधर से उधर, तो इसका 200 करोड़ स्टार 1.2 भी यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आ गया बिकॉज ये मैंने इतना डाला हूँ। तो 240 करोड़ का वोलेटिलिटी है, 240 करोड़ के हिसाब से हमको उतना निफ्टी शॉर्ट कर देना चाहिए। निफ्टी शॉर्ट क्यों करेगा? बिकॉज पोर्टफोलियो अगर गिरेगा, निफ्टी भी गिरेगा, तो निफ्टी से प्रॉफिट आएगा, पोर्टफोलियो से आपका लॉस होगा, लॉस मिला के एडजस्ट हो जाएगा। तो बीटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीटा बोलता है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट हाउ वोलेटाइल वुड बी द फंड। अगर बाजार ऊपर जाता है तो ये 200 रुपया का सामान आपका, बाजार एक 1% बढ़ने से 200 रुपया 240 ये हो जाएगा, 1.2 टाइम्स बढ़ जाएगा। बाजार अगर 1 टका बढ़ता है, नॉन 1%, इफ द बेंचमार्क गोज बाई 1, पोर्टफोलियो would go by 1.2, as simple as that। 20% बेंचमार्क, जितना बेंचमार्क 10% रिटर्न देता है, तो 1.2 ऑफ 10% बढ़ जाएगा। बेंचमार्क अगर 10 टका गिर जाता है, 10% गिर जाता है, तो 1.2 इंटू 10% के हिसाब से बढ़ जाएगा। दैट इज 20% ऑफ 10, दैट इज अराउंड 12। So that is how it goes. So beta helps to get a hang of the things कि मेरा how volatile would be my portfolio in comparison to the volatility that would be coming our way through index। इंडेक्स में जितना volatility रहेगा उसके हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो कितना हिलेगा। जैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन डेट में क्या बोलता हूँ, इंटरेस्ट रेट चेंज करने से कितना नैव वहां पे चेंज होगा, उस किस्म से आप समझ सकते हो। पर बीटा इज अप्लाइड टू इक्विटी फंड्स। इज दिस क्लियर मैम? सरिता मैम, इज दिस क्लियर? मैडम यस नो? थैंक यू, थैंक यू। भास्कर रे, थैंक यू, आपने बोले हो कि आपको समझ में आ गया है, थैंक यू। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अल्फा, वी विल बी डिस्कसिंग शार्प रेशियो, और ये आज देख लीजिएगा, ठीक है ना? और आपको ट्रेनर रेशियो भी दिखा देंगे, ये सबसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो अल्फा इज अ मेजर ऑफ द फैक्ट हाउ स्मार्ट इज द फंड मैनेजर। फंड मैनेजर कितना स्मार्ट है, ये अल्फा से पता चलता है, अल्फा से पता चलता है। सो अल्फा, देखो एक चीज याद रखिए। अच्छा क्या लिखा है पहले ये देख लीजिए, राइट, उसके बाद दिमाग लगाते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव अल्फा इंडिकेट्स परफॉर्म आउट परफॉर्मेंस, नेगेटिव अल्फा। अच्छा लेट मी पुट इट लाइक दिस, एक फंड ने रिटर्न दिया 30 टका, एक फंड हैज गिवन यू रिटर्न ऑफ 30%, और आप देखा उसका अल्फा है -5। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भैया फंड को रिटर्न देना चाहिए 35 टका, वो रिटर्न ढंग से कर नहीं पाया, 30 टका दिया है। तो इन आइसोलेशन 30% यू मे बी इलेटेड, बिकॉज आपका रेफरेंस फ्रेम था एफडी और हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न इन द मिड कैप और लार्ज कैप, व्हाटएवर द केस में, उस एंगल से आपको अच्छा लगा। पर इन रियलिटी वो ज्यादा रिस्क लिया है और रिस्क को जस्टिफाई भी नहीं कर पाया। सो दैट इज वेयर अभी से कि अल्फा, नेगेटिव अल्फा इंडिकेट्स अंडर परफॉर्मेंस, जो रिस्क दिया है उसके हिसाब से रिटर्न नहीं दिया है। और
वैसे ही आ, अगर पकड़ लीजिए रिटर्न 25% दिया, 25, और अल्फा इज +5, मतलब उसको 30%, सॉरी, उसको गौर से देखिए, ये क्या बोल रहा हूँ कि उसका 25% का रिटर्न दिया है, 25%, और अल्फा इज +5, तो आइडियली उसको मिलना चाहिए था 20। तो फंड मैनेजर इज स्मार्ट, जो मिलना चाहिए उसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, उसके ऊपर ज्यादा रिटर्न दे देता है तो फंड मैनेजर इज 0, नहीं तो फंड मैनेजर इज 0। तो अल्फा पॉजिटिव मतलब आउट परफॉर्मेंस आया, नेगेटिव मतलब अंडर परफॉर्मेंस, पॉजिटिव मतलब फंड मैनेजर इज स्मार्ट, नेगेटिव मतलब फंड मैनेजर इज नॉट स्मार्ट, ऐसा समझ। सो सो दैट इज अबाउट अल्फा। तो एक्सेस रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू द रिटर्न ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स, सो दैट, इसको हम अल्फा बोलते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, जो एनी रिटर्न ओवर एंड अबव रिस्क एडजस्टेड, रिस्क लोगे फंड में तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको मिलना चाहिए। यू आर सपोज टू बैग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलना चाहिए। अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको मिल रहा है, मतलब इट इज गुड। अगर बहुत ज्यादा मिल रहा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से तो वो पॉजिटिव अल्फा है, उससे कम मिल रहा है तो नेगेटिव अल्फा। सो दैट इज अबाउट अल्फा, द मेजर ऑफ द फैक्ट हाउ स्मार्ट इज योर फंड मैनेजर, दैट इज अल्फा। ठीक है, और ये अल्फा है। देख, एक तो चीज आता है ट्रैकिंग एरर, और आज जो जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैकिंग एरर इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ पैसिव्स, ये पैसिव फंड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रैकिंग एरर। पैसिव फंड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रैकिंग एरर। तो उसमें क्या है, देखो पैसिव फंड्स में क्या है ना, द फंड्स शुड बी, उसका रेगुलेशंस होता है कि रेगुलेशन मतलब उसका एक्सपेक्टेशन से यू शुड फॉलो द बेंचमार्क, और बेंचमार्क को फॉलो करो। बेंचमार्क 13% देगा, आप 13% दो, ज्यादा रिटर्न दे दोगे इट इज बैड, ट्रैकिंग एरर पड़ रहा है। तो दो, एक फंड है पकड़ लीजिए, एक फंड मैनेजर रिटर्न दिया 12%, एक फंड मैनेजर रिटर्न दिया 13, और फंड का जो रिटर्न है इट इज समथिंग अराउंड पकड़ लीजिए 11 रुपया। तो आइडियली ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ज्यादा गलत, इट इज मोर बैड। इट इज सो सो, ठीक है, ये इसका कंपैरिजन में अच्छा है, इसका कंपैरिजन में अच्छा है, बिकॉज इसका भी ट्रैकिंग एरर है 1। सो ट्रैकिंग एरर मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्सेस ऑफ द रिटर्न, तो जो रिटर्न है वही आपको लेके आना चाहिए, बिकॉज यू आर एग्जीक्यूशन ही तो कर रहे हो, दिमाग तो नहीं लगा रहे हो। अब जो भी पोर्टफोलियो है पब्लिक डोमेन में उसको रेप्लिकेट करना है। सो ये पैसिव फंड्स के लिए होता है, एक्टिव फंड्स के लिए लागू नहीं होता ट्रैकिंग एरर। तो पैसिव फंड्स वही अच्छा है जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, दैट पैसिव फंड इज गुड जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम है। So that is a way to measure which passive fund is good. The lower the tracking error, higher is the consistency in performance. That is there. Anybody has any questions? Any questions so far? Uh, Ajmer sir, are you there, sir? Yes, sir. And then. Sir, I have an observation. Please do not get me wrong. Maybe अभी Yeah, देखो, tell me. most of you are from Mumbai, तो Yeah. Mumbai is extremely busy town. अभी we are losing audience. So losing audience in the sense हम लोग लगभग अभी 43 पे खड़ा हो गया। Right. So And we going were by at that around thing, what 60, I, 70. हाँ, तो इनिशियली इट वाज देयर, बट होपफुली जो भी है, तो अभी क्या है, आई डोंट थिंक इट मेक्स अ पॉइंट टू कंटिन्यू द सेशन फर्दर। तो हम लोग कल Okay, sir. मिलते हैं, शार्प रेशियो टर्न रेशियो कर देंगे, बिकॉज Okay, done, sir. ऑडियंस निकल जाएगा तो फायदा नहीं है ना, तो कल सुबह करेंगे जो भी डाउट्स होगा। ठीक है सर, डन डन चलेगा। एक सेकंड सर, एक तो क्वेरी आए तो अभी एक बार ग्रुप में बोलूंगा। अभी तक सुबह से जो भी डिस्कशन हुआ है, सुबह मतलब वी हैव कनेक्टेड फ्रॉम 4 अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट बाद, 10 minutes to 4 जो हाँ, भी। राइट। कुछ डाउट्स है तो बताइए। श्वेता मैम का एक डाउट्स आया हुआ है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ट्रैकिंग एरर नॉट एप्लीकेबल ऑन अदर फंड्स, नो मैडम। श्वेता मैम, तो प्राइमरीली फंड्स जैसे आपको बताया हूँ एक्टिवली मैनेज्ड हो सकता है या पैसिवली मैनेज्ड हो सकता है। अगर मैनेज्ड फंड्स का आप बोलोगे
तो पैसिव फंड्स के लिए ट्रैकिंग एरर एप्लीकेबल होगा, बिकॉज अगर एक्टिव फंड्स कौन सा अच्छा है, जो बेंचमार्क में जितना शिकस्त दे, द गाय इन एक्टिव फंड्स, लॉजिक ही है बेंचमार्क को मारो, जितना ज्यादा बेंचमार्क को पीटेगा उतना ही अच्छा है, जितना अल्फा क्रिएट करेगा मोर द मेरियर, इफ आई एम अलाउड टू पुट इट लाइक दिस। बट इन केस ऑफ पैसिव इट इज नॉट द रूल। इन केस ऑफ पैसिव आपको बेंचमार्क को फॉलो करना है। जैसे एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, XYZ निफ्टी वैसा फंड, तो बहुत सारा फंड्स है ना, तो कौन सा फंड सही है, तो कॉस्टिंग भी देखा जाता है और ट्रैकिंग एरर भी देखा जाता है। अदर अदर फंड्स ऑल्सो, मे बी मिड कैप IT इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, तो ये सब चीज है। So that is how it works. So that is why tracking error is applicable only in case of passive funds. वही फंड अच्छा है जिसका ट्रैकिंग एरर कम है। थैंक यू। एनीबडी एनी अदर क्वेश्चंस? आई वुड रिक्वेस्ट यू, जैसे श्वेता मैम ने सवाल पूछ रहा है और भी सवाल पूछा है, सरिता मैम ने पूछा है, तो आप ना अभी सवाल पूछा करो। सवाल पूछने से हमको भी सुविधा है। आई फील मोटिवेटेड इन द फैक्ट, अच्छा देखो, आई एम नॉट बीन एबल टू सी यू ऑल, कौन कहाँ पे कैसा है, पर सवाल आने से तो कम लगता है वी कैन कनेक्ट विथ यू, दैट इज देयर। आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल जाएगा, ऑल दोस थिंग्स, शार्प रेशियो एंड अदर थिंग्स आर देयर। आई वुड रिक्वेस्ट यू, कल आप थोड़ा सा ये शार्प रेशियो पढ़ के आओ, ट्रेनर रेशियो पढ़ के आओ, ये दो चीज समझा देंगे, टेक्निकल विल बी डन। आफ्टर दैट जो भी चीजें आप पढ़ के समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। मैं कुछ चीज और भी रिपीट भी कर दूंगा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है नहीं है। So from our end, it would be there. So कल थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, so tomorrow we'll be connecting at something around 10:30 के आसपास में। एंड इफ पॉसिबल सर, मैं एक तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना अभी ग्रुप को अनम्यूट करने का मौका दीजिए। अच्छा ओके सर, तो श्वेता मैम, मैं अभी ये PDF सर को भी मेल कर दूंगा। तो सर का ईमेल ID मेरे का, सर आपने हमको टेक्स्ट कर दियो सर, आपको आप अपना ईमेल ID। हाँ सर, मैंने व्हाट्सएप किया है आपको। अच्छा ठीक है, प्लीज मैं चेक। डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा श्वेता मैम, जैसे सेशन खत्म होगा मैं डाल दूंगा सर, आपको दे देंगे, दो बार। उमा मैडम के पास ऑलरेडी चला गया, दैट इज देयर। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट कि आप लोग ना क्वेश्चन, मतलब ग्रुप को अनम्यूट करके किस, हैंड रेस करो, कुछ क्वेरी है तो वी वुड बी अनम्यूटिंग यू। आप हैंड रेस कर लीजिए, किसी को कुछ क्वेरी है तो वी कैन अनम्यूट यू, नॉट एन इशू। आप हैंड रेस करोगे ना तो हम लोग आपको अनम्यूट कर देंगे, तो आप सवाल पूछ सकते हो, इन केस एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, यू कैन अनम्यूट। ओके सर, इनको अनम्यूट करेंगे, एक तो हैंड रेस हुआ है सर। सर एक मिनट। हाँ श्वेता मैम ने है, रुकिए रुकिए, एक बार उनको अनम्यूट कर दीजिए। मेरे पास तो राइट्स नहीं है, आप तो एक बार अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आई कुड सी someone if you has joined as Nirmal among host, I believe the host have the power to unmute। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, अगर कोई साथ में उनका है तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए। मैम आल्सो से समथिंग, आई डोंट हैव द पावर, में दिख नहीं रहा है हमको। अजमेरा सर, एक बार यस देखेंगे, सर। एक बार हाँ सर, मैं देखिए, वही कर रहा हूँ। एक बार हाँ, एक ही मिनट में वही कर रहा हूँ। यस। अच्छा, तो क्वेश्चन आया फ्रॉम शुभिर दत्ता, सर रूरल एरिया से भी क्वेश्चन आता है कि SIP स्टार्ट करने के बाद अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर कुछ हो जाता है तो किसको कांटेक्ट करूं, इसका सही आंसर क्या दूं? अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हो तो, और क्लाइंट पूछ रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ हो जाता है तो मैं किसके पास जाऊं, तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कस्टमर केयर कांटेक्ट है फोलियो में, तो वो अपना मैन्युफैक्चरर से बात करेगा। अगर ब्रिटानिया बिस्किट खरीदने के बाद बिस्किट में मॉस्किटो निकलता है या कोई इंसेक्ट्स निकलता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ी ना आप गाली दोगे, मैन्युफैक्चरर को फोन कर लोगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, और कैंप्स का एड्रेस, कैंप्स का नियर बाई कैंप्स का फोन नंबर दे सकते हो। कैंप्स या करवी जो भी RTA है, टुमारो हम लोग RTA के बाद बोलेंगे। तो आइडिया क्या है, जो कॉल सेंटर नंबर है, आप भी एक बार फोन कर लीजिएगा, तो एक बार देख लीजिएगा फोन करके, तो उनको भी सुना दीजिएगा, देखिए आपका नैव क्या है, पूछने से सब बता देता है, फंड वैल्यू क्या है।
तो वो कस्टमर केयर का नंबर दे देंगे, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर तो अब क्लाइंट का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर तो अपना जेब में नहीं घुसाया है ना, डिस्ट्रीब्यूटर माल दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर खुद का मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। तो एसबीआई का अगर मान लिया, एसबीआई का कस्टमर का सपोर्ट रहेगा, एसबीआई का ऑफिस एसबीआई बैंक में भी जाके बातचीत करेगा तो होगा। सो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट का जो फैक्टर है बिल्कुल है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गिव मी द कॉन्टेक्ट, गिव देम द कॉन्टेक्ट नंबर। अगर ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन में वो रिडीम भी कर सकता है, बैंक में आ जाएगा, अपना नॉमिनेशन बैंक डिटेल्स अपडेट रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर वो अपने में अपडेट रहेगा। सो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा अपडेट रखना चाहिए, नॉमिनेशन वगैरह। सो दैट इज शुड बी, आई बिलीव आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो अगर ऐसे कोई बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर गुजर जाएगा, देखो आई डू नॉट नो, बट सिंस यू आर अटेंडिंग इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ निर्मल बैंक, तो निर्मल बैंक का तो क्या है, पार्टनर्स रहता है, ये आप भी रहोगे एग्जैक्टली मॉडल तुमको पता नहीं है, थ्रू पार्टनर्स यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग या आप क्लाइंट को बेच रहे हो, तो आप निर्मल बैंक का भी फोन नंबर दे सकते हो। आदमी का देहांत हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का देहांत कैसे होगा? सर टोटल एमएफ डिटेल्स इन्वेस्टमेंट का कहाँ से मिलेगा? आप ये है ना यहाँ पे क्या बोलता है आपका टोटल एमएफ का, अगर कोई निर्मल बैंक से तो आपको मिल जाएगा वो पोर्टफोलियो में, बट अदरवाइज देयर इज अ ये एमएफ, एमएफ क्या है, मैं भूल गया हूँ, वहां पे एक तो है, वहां से भी एमएफ सेंट्रल, सर मैंने एमएफ श्वेता सेंट्रल। मैम को अनम्यूट करवाया है। श्वेता श्वेता मैम मैम, कैन टॉक या। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ टोटल, अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए श्वेता मैम बताइए। श्वेता मैम, हेलो मैम, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हेलो। मैम अनम्यूट कर लीजिए आप। आई गेस उनका माइक का कोई इशू लग रहा है, शी इज नॉट एबल अच्छा टू हो अनम्यूट। सकता है, हो सकता है। हाँ। तो मैम कल एक बार देखते हैं सर, कैन यू फिगर इट आउट, मैम क्या बोल रहा है, इफ आई वांट टू नो कि लास्ट 20 years से हाउ मच एंड वेयर आई हैव इन्वेस्टेड डायरेक्टली एंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, वो एमएफ सेंट्रल से ही मिल जाएगा पूरा डिटेल्स, वो पैन नंबर देंगे, कैंप्स करवी से भी निकल के आ जाएगा। एमएफ सेंट्रल से भी निकल जाता है सर। हाँ हाँ निकल जाएगा, पैन नंबर देंगे तो पूरा निकलेगा, जो भी है वो तो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। अगर बहुत पुराना है तो वहाँ पे पैन वैन अपडेट करना पड़ेगा, तो वो अपडेट करने से हो जाएगा। कुछ अगर इन्वेस्टमेंट ट्रैक नहीं है तो एएमसी में जाके बोलेंगे तो अभी रिसेंटली एक मूव आया था, सस्पेंस में जो जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर आउट कर देगा अपने, तो वो सब होता है, दे तो टाइम एंड अगेन दे कीप ऑन डूइंग दिस ऑपरेशंस। एक पैन नंबर देने से एएमसी बता देता है, एक जगह में जाना है तो कैम्सन कर भी, आई बिलीव द सिंगल पॉइंट का कॉन्टेक्ट में, अगर फोन नंबर नहीं चेंज किया फोन नंबर के अगेंस्ट में भी वो लोग बता देते हैं। हम्म। तो श्वेता मैम मेरे ख्याल से आपका कुछ वॉइस का इश्यूज है आपका एंड में, तो बात हो नहीं पाया, सॉरी फॉर द सेम। अभी इट इज 5:56 है। अच्छा, आपने श्वेता मैम तो होस्ट पैनलिस्ट में आ गया, वेरी गुड। मैडम बोलिए, पैनलिस्ट हो गए हो, अभी सवाल पूछिए। नहीं हुआ अभी, ऐसा तो लग रहा है। सो एनीवे अजमेरा सर, मैं आपको मेल कर देता हूँ ये वाला डिटेल्स, और कल सुबह 10:30 का जो टाइम है, तो अराउंड 10:30-10:35 में आ जाऊंगा। डन डन सर, डन। ठीक है। सर कल कंटिन्यू करते हैं शार्प रेशियो वगैरह। हाँ शार्प रेशियो वगैरह वो सब मैं कवर करूंगा, डोंट वरी, बट ऐसे ही पढ़ना है, मटेरियल्स दिया गया है, आप पढ़ो, और मैं जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है वो दे दूंगा, और क्वेश्चन से एक्चुअली आप क्वेश्चन बैंक भी है, क्वेश्चन बैंक भी देख लेंगे, तो मैं कल क्वेश्चन बैंक्स भी 2-3 दिखा दूंगा, नॉट एन इशू। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू।